Hello everyone, I am Ankit Kanodia, founder of SmartSync Services, a SEBI registered investment advisory firm based out of Ahmedabad. Welcome to the seventh episode of Leaders Ka Falsafa. For those who are joining or watching for the first time, Leaders Ka Falsafa is a new initiative of Mission Smile where we call promoters or top management of listed businesses in India and deep dive into their businesses and their journey. Mission Smile stands for Making New Stock Market Investors Learn It Through Engaging Research. More than 7,000 investors have benefited from our various initiatives in our Mission Smile community. Today, for our seventh episode of Leaders Ka Falsafa, we have with us Mr. Ramesh Bhai Talavia, the CMD of Dharmaj Cropguard Limited. Please bear with me as I read out Ramesh Bhai's introduction as it is going to take some time, but I did not want to miss a single word. So here it is. Born in the heavenly backdrop of a small yet beautiful village in Gujarat, Ramesh Bhai displayed an active passion in pursuing a field that connect him to the society and development in general. He found his calling when he studied about the economic driver of the country, agriculture. After he was conferred with a BSc degree in agriculture from Gujarat Agricultural University, he went on to associate with companies like Coromandel International in 1993 as a sales executive. Even after he held a prestigious position of being the regional manager for the organization's operation in various states, he thought he was lacking in his contribution to finding the solution for some of the biggest challenges of the country, and that is availability of food. In 2004, Crop Life Science Limited was incorporated by Ramesh Bhai. He received humongous support in his endeavors from Mr. Jaman Talavia and other colleagues who believed in his vision. The agrochemical industry saw a beacon of hope in this company, which reached a new height of establishment under his leadership. An extension of his zest saw the foundation in Dharmaj Cropguard Limited in 2015 and became a name to reckon with when it came to agrochemicals and a beneficiary to the farmers of the nation. That was about Ramesh Bhai's introduction. Now let's move to the standard SEBI disclosures. As on date, I have no holdings in the company and my firm SmartSync Services has no recommendation, have not recommended this business to any of our clients. However, I have with me my colleague Shivam Shah, who has done deep research in the business and the industry and also holds shares of Dharmaj Cropguard in his personal capacity. Shivam has also written a couple of blog posts that can be very useful for anyone who wishes to know about the agrochemical industry and the business of Dharmaj Cropguard. We are sharing the links of the blog post here in the comments, and we will also make it a point to put it in the description on our YouTube channel when we post a recording of today's session. Shivam is my co-host today, and I'm sure that his knowledge and questions on the business will be very helpful to us when we progress in the session today. Another important disclosure as per SEBI is that we have received no compensation from the management of Dharmaj Cropguard for this session. Hence, treat it as an educational initiative to learn about the business, but do not treat it as a recommendation. Now, with the disclosures out of the way, I want to share something special. Normally, we keep these sessions in English, but today, courtesy Ramesh Bhai, we are going to keep the session in Hindi. And I am elated to start this in Hindi. रमेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लीडर्स का फलसफा चैप्टर 7 में। धन्यवाद आपका। और तहे दिल से शुक्रिया जाहिर करता हूं स्मार्ट सिंक और मिशन स्माइल कम्युनिटी की तरफ से कि आपने अपने कीमती और बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला। आप पहले कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं एक एक करके क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूं? बस जो शिवम भी मुझे हम आपसे पहले जब गोवा में मिला थे तब अपना इंट्रोडक्शन हुआ और बातचीत इंटरेक्शन हुआ, तो हमको भी अच्छा लगा। फिर आप अपने ऑफिस पे आए और हमारा डिस्कशन हुआ और आपने बताया कैसा ऐसा करते हैं। मैं बोला बढ़िया है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप जो भी क्वेश्चंस है वो बताइए। थैंक यू रमेश भाई। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं जिसमें आपकी और आपकी कंपनी की स्टोरी या हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानना चाहूंगा। तो आपका अगर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक इम्प्रेसिव बैकग्राउंड है, जो आप खुद किसान परिवार से है और आपने कोरोमंडल इंटरनेशनल और क्रॉप लाइफ साइंस जैसी कंपनीज के साथ काम भी किया है, उन हाँ, एक्सपीरियंस से आपको कौन सी की लर्निंग्स मिली
जो आपको धर्मज क्रॉप गार्ड शुरू करने के लिए प्रेरित करी? मतलब आप जितना हो सके डिटेल में बताइए, क्योंकि मुझे, हम लोग जब आपके ऑफिस में मिले थे और गोवा में भी जितनी देर भी आपसे बात हुई थी, मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया था कि आप किस हिसाब से, किस बैकग्राउंड से आके, कैसे आपने कितने स्ट्रगल्स और कितने हाँ, एक्सपीरियंस करने के बाद आपने ये स्टार्ट किया। तो थोड़ा जी। विस्तार में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। बेसिकली जैसे आपने बताया कि हम मैं मेरा फादर किसान है, हम किसान पुत्र हैं। तो हमने डे वन से एग्रीकल्चर का पूरा जानकारी है कि खेती कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आता है, क्या क्या प्रॉब्लम रहता है। तो उसी बेज पे हमने बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ज़्यादा डिप्थ में गए, फिर डिगिंग किया कि नहीं इसमें काफ़ी स्कोप भी है, चैलेंजेस भी है, प्रॉब्लम्स भी है। फिर हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसी कंपनी में काम किया 12 साल। तो उस कंपनी से हमको काफ़ी लर्निंग मिला, बेसिक थिंग से बिजनेस तक। क्योंकि उस कंपनी में काफ़ी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड करते थे, फील्ड एक्टिविटी भी करते थे, और बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी जाते थे। तो हमें अंदर एक ऐसा था कि भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं। हम एक बार कोरोमंडल की ट्रेनिंग में गए थे बेंगलोर। वहाँ एक रिसोर्ट में हमें 10 दिन रखा गया था कि वो, भाई आप याद करो डे वन से यहाँ तक कैसे पहुंचे। वो याद करते करते अपने को एक अंदर से इंट्यूशन ऐसा आया कि भाई हम भी कुछ ऐसा करें कि भाई हमारी कुछ फैक्ट्रियाँ हो 2-3 और हमारे साथ 500-1000 लोग काम करते हो, हम नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो एक ड्रीम था अंदर, एक इंट्यूशन था कि भाई ऐसा कुछ करना, हमें कुछ करना है। और तब से लेके जब भी हमने कोरोमंडल में 12 साल जॉब किया, फिर एक सिचुएशन बना दो पार्टनर के साथ, भाई आप आओ हमारे साथ, हमारा ये क्रॉप लाइफ साइंस जो कंपनी थी उसमें एज ए डायरेक्टर हमने ज्वाइन किया। और फिर वो कंपनी को हमने जीरो से लेकर 100 करोड़ तक 10 साल में पहुंचाया। तभी हमारे पास कुछ फाइनेंस भी नहीं था, और जीरो से हमने स्टार्ट किया था। हमारे पास जो भी सैलरीज में से बचा था वो इन्वेस्टमेंट किया 10 1 लाख, और हमने वो कंपनी स्टार्ट किया, और 10 साल में हमने एक लेवल तक पहुंचा था। फिर उसमें से हमें काफ़ी डे टू डे लर्निंग हुआ, पूरे भारत भ्रमण किया हमने, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी था हम वहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और उस बिजनेस से लेकर हमको काफी ऐसा लर्निंग हुआ कि भाई हम एक रेप्यूटेड कंपनी में जब भी काम करते हैं तो कंपनी का एक बैनर के नीचे काम करते हैं। जब अपना खुद का लेके जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हुआ हमें। तो हमें एक गुजरात को एक मॉडल था कि भाई हम गुजरात में इतने साल से काम किया है, तो आज कोरोमंडल का 200 250 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हम सभी के पास जाएंगे, हमारा 2 2 4 4 लाख का काम करेंगे तो भी हम 10 15 करोड़ का धंधा कर लेंगे। पर उसमें से अपने को काफी लर्निंग मिला कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर समझते थे, तो वहां से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 70 80% लोगों ने हमको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई वो तो छोटी कंपनी है, उसमें क्या करें। फिर हमने अपनी तरीके से नया नया एरिया ढूंढा, नया नया कस्टमर्स के साथ विजिट किया। और फर्स्ट ईयर जो 2004 में हमने क्रॉप लाइफ चालू किया था, तब हमने फर्स्ट ईयर 5 करोड़ का बिजनेस अचीव किया था। कोई एम्प्लॉयज भी नहीं था, हम अकेले सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे थे। उसमें से जो लर्निंग हुआ कि भाई नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, उसके लिए अपने को काम करना पड़ता है। तो हमने तभी से सीखा कि भाई ये फील्ड एक्टिविटी करना पड़ेगा, ये सब कार्य करने से ही अपने को आगे बढ़ेंगे। और बेसिक नॉलेज जो इनपुट्स जो चाहिए वो हमें सारा था एज ए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो फार्मर से लेकर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का जो चेन है उसमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, फार्मर का क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्यूशन देना चाहिए। तो ये सारा डिटेलिंग की वजह से एक बड़ा एस्पेक्ट लेके हमने ये कंपनी स्टार्ट किया। फिर हमने 2015 में ये धर्मत स्टार्ट किया। तो ये सारी चैलेंजेस हमने ऑलरेडी पहले कर चुके थे। तो उसमें उस इस धर्मज में आके हमको काफी मतलब आसान रहा कि भाई हमें अब आगे ग्रो करना है। ये सब बैकग्राउंड ग्राउंड लेवल का वर्क हमने ऑलरेडी पहले कर चुके थे 10 साल में। तो इस लेवल से हमें काफी अपडेट्स रहा, और हमने धर्मज चालू करने के बाद आप हमारी धर्मज की जर्नी देख ही रहे हो, 2015 से आज 2024 तक हम वहां से यहाँ ले आए। तो ओनली एंड ओनली दिस ग्राउंड लेवल का वर्क और बेसिक नॉलेज, तो उसकी वजह से सारा ये जो केमिस्ट्री है मैच करके हम आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। थैंक यू रमेश भाई, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जनरली जो हम लोग
काफी प्रोमोटर्स और सक्सेसफुल बिजनेस में देखते हैं कि प्रोमोटर का एक विजन होता है और एक ड्रीम होती है, और उससे वो कंपनी तो स्टार्ट कर देते हैं, बट बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, स्पेसिफिकली सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जो वो फिर धीरे धीरे सीखते हैं। मगर आपके केस में, क्योंकि आपने पहले से ही सेल्स में जॉब किया था और वो भी हाँ, बड़ी कंपनी कोरोमंडल, तो आपको नहीं यस, लगता कि आपके पास ये एक एडवांटेज था कि आप पहले दिन से सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे से परिपक्व थे, जो आपके हाँ, ग्रोथ में आपको हेल्प किया? हाँ। मतलब ये हमें पहले से सेल्स का पैसेंस भी है। हम जैसे डे वन से हमारा जो जर्नी है, करियर है, वो सेल्स से स्टार्ट किया है। और सेल्स में काफी हमने सीखा है, क्योंकि रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारी लेते हैं। तो उसी वे में एक्सपीरियंस से अपने को रोज कुछ ना कुछ लर्निंग मिलता है, और उसको हम नेक्स्ट डे अप्लाइड करते हैं कि भाई ऐसा नहीं वैसा करते हैं, वैसा नहीं वैसे करते हैं। तो उस तरीके से सिचुएशन जो भी बनता है उसको कैसे हैंडल करें, और जो भी चैलेंजेस आता है उसको किस तरीके से हम सॉल्यूशन दे के उसको आगे बढ़ाए। तो ये काफी लर्निंग अपने को कोरोमंडल से भी रहा, फिर हमने क्रॉप लाइफ चालू किया उसी में से भी रहा। तो ये सारा जो अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ था वो हमने धर्मज में अप्लाइड किया, और हम उसी बेस पे आगे बढ़ते रहे। राइट। और मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था रमेश जी, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, इसमें हाँ, एक बहुत ही बड़े दिग्गज इन्वेस्टर रह चुके हैं यूएस के, अमेरिका के, जिनका हाँ, नाम है फिलिप फिशर। उनकी एक बुक है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। तो या, उसमें उन्होंने ये बात रखी है कि बेस्ट हम्म, ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं होती जिनकी आरएनडी बहुत स्ट्रांग होती है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनकी सेल्स टीम बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि या, आरएनडी जरूरी है, ऐसी बात नहीं कि आरएनडी जरूरी नहीं है, बट आरएनडी के साथ साथ सबसे पहले जरूरी है कि आप कैसे बेच सकते हो। एंड जो हाँ, प्रोमोटर के पास सेल्स का बैकग्राउंड होता है पहले से ही, वहां पे एक हाँ, आपके पास एडवांटेज भी होता है। या। राइट। वो लैब से लैब टू लैंड तक कैसे लाया जाए, मतलब वो जो R&D का कॉन्सेप्ट है उसको एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, वही मेन थिंग रहती है कि वो सेल्स का की पर्सन माना जाता है। मतलब सेल्स उसी नस नस में भरा होता है कि भाई उसको किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ पहुंचा के अपने को इसको मल्टीप्लाई करते जाना। यस शिवम, आपके पास भी कुछ सवाल है, शायद आप भी पूछ सकते हो। नहीं, सवाल से ज्यादा जस्ट एक लाइक याद आया मेरे को। आई थिंक 7-8 मंथ्स पहले भारत कनेक्ट में, आई थिंक अरियंत में, आई थिंक फर्स्ट टाइम आई हर्ड रमेश सर स्पीक। उन्होंने एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बढ़िया लाइन कहा था। वेरी सेड कि धर्मज नाम नया है लेकिन लोग बड़े पुराने हैं। सो लाइक लाइक इट क्लियरली शोज दैट उनका एक्सपीरियंस भी। आई थिंक उन्होंने मध्य प्रदेश में भी एक मूंग दाल का एक एग्जांपल दिया था, विच आई क्लियरली रिमेम्बर। सो सर, अगर आप लाइक आपका ये एक्सपीरियंस है, लाइक अगर हम लोग एग्री केमिकल इंडस्ट्री को अगर हम लोग देख समझना चाहे अच्छे से, तो आप किस तरीके से लाइक हमको एक इजी वे में समझा सकते हैं कि लाइक एज एन इन्वेस्टर और ए लेमैन हम किस तरीके से एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को समझ सकते हैं? एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को समझने के लिए जैसे जो भी हम जियोग्राफिक एरिया में काम करना चाहें, उस जियोग्राफी एरिया का अपने को सारा डिटेलिंग पता होना चाहिए कि भी उसकी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उसका वेदर कंडीशन क्या है, फार्मर का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। वो सारी जानकारी होने के बाद हम एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं कि भी ये रीजन है, ये जियोग्राफी है, तो उसमें ये क्रॉप है, एक क्रॉप का सोइंग टाइम ये है, हार्वेस्टिंग टाइम ये है, और सोइंग टाइम से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम पे उसमें कौन कौन पेस्ट आता है, उस पेस्ट का कंट्रोल मेजर क्या है, और वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अपने पास है कि नहीं है। तो ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से हमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो करना चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप आता है कि टीम का। अगर आपके पास सही टीम है, जो पीपल, आप देख रहे हो आज की डेट में पीपल मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस वर्ल्ड। तो ये अपने पास सही टीम होना चाहिए। अगर सही टीम होगा तो नेटवर्क नीचे सही बनेगा, तो नेटवर्क सही बनेगा तो आपका 60-70% काम आसान हो गया। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें आगे बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्ट कैसे मार्केट में डालना है, ग्राउंड लेवल पर कैसे वर्क करना है, उस बेस पे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। पर ये मेन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की थ्योरी है कि फर्स्ट
जो भी रीजनल, जो भी जियोग्राफी में काम करते हैं उसका क्रॉपिंग पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, क्रॉप का नॉलेज होना चाहिए, फार्मर का ट्रेडिशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, फार्मर लैंड होल्डिंग भी देखना पड़ता है। अगर स्मॉल फार्मर है तो वहाँ छोटा पैकिंग चलेगा, बड़े फार्मर है तो बड़ी पैकिंग चलेगा। और क्रॉप के हिसाब से भी चलेगा कि ये सपोज मेज है तो मेजर हर्बिसाइड जाएगा उसमें, शुगर केन है तो मेजर हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड जाएगा। तो क्रॉप टू क्रॉप का नॉलेज होना चाहिए, उसकी फार्मर की टेंडेंसी पता होना चाहिए, फार्मर लैंड होल्डिंग पता होना चाहिए। उस बेस पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मार्केटिंग टीम और नेटवर्किंग करके हम उस बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं। ये एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मेन तास है कि ये बेसिक फंडा है। और आज हम इतने साल से एक्सपीरियंस है तो हमें यहाँ जैसे कोई भी हमारा टीम है या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करते हैं तो अपने को ये कितना सच है कितना नहीं सच है वो सब सामने विजुलाइज होता है कि भाई ये नहीं ऐसा होता है। तो उस बेज पे हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो मेन प्रैक्टिकलिटीज अपने पास होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल में इस तरीके से इस एरिया का ये कंटेंट्स है। राइट, राइट। सो रमेश भाई, आपने अपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में थोड़ा तो बताया था कि आपने अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखा है स्टार्टिंग के, कि आपको धर्मज क्रॉप गार्ड में बहुत सारी चीजों का आपको पहले से ही आइडिया था कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मगर अगर आपने देखे कि इतने रिलेटिवली कम समय में जो ग्रोथ अचीव किया है हमारी कंपनी ने, हम्म। तो इस कंपनी की रैपिड सक्सेस में जो आपने बताया, उसके अलावा और क्या की डिसीजंस या स्ट्रेटेजी आपने अपनाए जिससे ये ग्रोथ आपने अचीव किया है इतने छोटे से पीरियड में? अब वैसे देखो तो अभी हमारा अंकित भाई इतना कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, ये हम इसको ग्रोथ नहीं मानते। जब हमारा एक विजन लेके हम चल रहे हैं कि भाई हम 2000 करोड़ पे पहुंचेंगे, उसके ऊपर जो ग्रोथ लाएंगे तभी ग्रोथ माना जाएगा। ये अभी स्टार्टिंग स्टेज है, बराबर। मतलब हमारा कंपनी इतना बड़ा नहीं है। आज हमारा लास्ट ईयर हमने 650 करोड़ पे क्लोज किया है, तो इस साल जो हमारा प्लानिंग है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो अब जाके आगे वाला जो चैलेंजेस है उसको हम ग्रोथ मानेंगे, अभी ग्रोथ नहीं है हमारा, जो हम हमारा खुद का परसेप्शन है। फिर भी अगर हम देखें जो अभी तक हम यहाँ ऐसे पहुंचे हैं कि एक सिंपल स्टेटमेंट है ना कि समय के साथ चलना चाहिए। अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाओगे, बराबर। तो इसके लिए हमने ये थ्योरी ये प्रैक्टिकल अपनाया है कि जो मार्केट को चाहिए वो हम सर्व करेंगे, बराबर। तो उसमें एक तो मेन होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो मैंने बताया कि भाई जो जो एरियाज में काम करे वो प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए। और उसके लिए ग्रोथ करने के लिए हमें ऑलवेज नया नया एरिया फाइंड करते हैं, नया एरियाज में काम करना शुरू करते हैं, नए प्रोडक्ट हर साल लॉन्च करते हैं और नए नए कस्टमर हर साल ऐड करते जाते हैं। जैसे हमारा बिजनेस मॉडल B2B और B2C है, तो B2C में नया नया स्टेट हम हर साल ऐड करते हैं, उस पाइपलाइन में नया नया प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लॉन्च करते जाते हैं। और नए नए कस्टमर एवरी ईयर हम ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हमारा ग्रोथ के एक मतलब ग्रोथ करने वाला फैक्टर है। और जो हमारा B2B बिजनेस है वो पान इंडिया में हम कर रहे हैं, फिर भी हमारा ऑलवेज तलाश रहती है कि नया नया कस्टमर ढूंढे, उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करें, नए नए एरियाज में जाए, नए नए कस्टमर को ऐड करें और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो बेच पे हम प्रोडक्ट नया नया लॉन्च करते जाए। तो ये जो हमारा कोर फैक्टर रहा है ग्रोथ के लिए कि भाई एवरी ईयर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नया एरिया फाइंड करना, नया कस्टमर ऐड करना। तो ये सब वे में हम ग्रोथ करते जा रहे हैं और आगे से भी हमारा जो मॉडल्स है उसी तरीके से हम ग्रो होंगे। और एक्सपोर्ट हमने स्टार्ट किया तो शुरू शुरू में 1-2 कंट्रीज में काम किया, फिर हर साल हम नया नया कंट्रीज में विजिट करते गए, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते गए और नए नए कस्टमर आइडेंटिफाई करते गया। तो आज हम 25-30 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, हमारे पास 60-70 कस्टमर भी है। तो ये हम समय के साथ साथ आगे चलते जा रहे राइट, राइट, राइट। सो रमेश भाई, मुझे याद आ रहा है कि आपने अभी जैसे B2B की बात की, तो आपके ऑफिस में जब हम लोग दिवाली के पहले मिले थे, तब भी आपने एक बहुत अच्छा हमको इंसाइट दिया था कि कैसे आपका बिजनेस, जो लोग देखने से B2B लगता है बट उसमें मार्जिन हाई होता है, हैं। और क्या क्या अलग तरीके से आप कर रहे हैं जो बाकी प्लेयर्स नहीं कर पा रहे। हम्म। तो उसके ऊपर थोड़ा अगर आप समय दो तो हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आई थिंक। बराबर। जैसे हम पहले तो खाली B2C कर रहे थे,
तो हमको धीरे धीरे छोटे छोटे कस्टमर अप्रोच करने लगे कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने ये स्टार्ट किया भी, चलो जो कस्टमर है खुद की ब्रांड पैक करके बेच रहे हैं, उसके पास फॉर्मुलेशन का फैसिलिटी नहीं है, तो वहां हमने ये कस्टमर पोर्टफोलियो में स्टार्ट किया। पहले तो वैसे ही स्टार्ट किया था, फिर हम डेप्थ में एनालिसिस किया, स्टडी किया कि भाई एक कस्टमर पोर्टफोलियो तो काफी है जिसके पास फॉर्मुलेशन का फैसिलिटी नहीं है। कई प्रोडक्ट का किसी के पास है तो कई प्रोडक्ट का नहीं है। हमारे पास तो एक रूफ के नीचे सारा फॉर्मुलेशन फैसिलिटी था, और हमने पहले से ही अपडेट कर रखा था क्योंकि हमें B2C में तो वो जरूरत थी। तो हम फिर उसमें नया स्टाफ रिक्रूटमेंट करना चालू किया। हमने खुद जाके हर एक कस्टमर के पास मिले, तो उसकी रिक्वायरमेंट आया भाई ये प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए वो चाहिए। फिर पूरा उसको ऑर्गेनाइज वे में हमने सिस्टमाइज किया कि नहीं, ये भी कस्टमर पोर्टफोलियो बड़ा है, इसमें भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि समय के साथ में ऐसा है, आज जैसे मैं कोरोमंडल में काम कर रहा था, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे समय के सारे एम्प्लॉयज आज खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी एग्रोकेमिकल का ही कर रहे हैं। बराबर, आज हमारे BSc एग्रीकल्चर वाले ग्रुप अहमदाबाद में देखो तो हमारे पास 15 कस्टमर है, कि जो पहले जॉब कर रहे थे अब छोड़ के अपना काम चालू किया। कोई छोटा कर रहे हैं, कोई बड़ा कर रहे हैं, इस तरीके से। तो और दूसरा एक हमने ये एनालिसिस किया कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे, C&F का काम करते थे, वो सबने खुद का ब्रांड में अपना कंपनी स्टार्ट किया है, तो वो उसको भी ये मटेरियल चाहिए। तो इस तरीके से आज हमारे पास B2B में अराउंड 600 कस्टमर का पोर्टफोलियो है। उसमें आपको मोर देन मतलब 450-500 कस्टमर ऐसा है कि वो छोटा छोटा काम है। पूरे साल में जैसे हम B2C में करते हैं वैसे ही काम करते हैं, भाई हमें 200 लीटर ये चाहिए, 50 किलो ये चाहिए, 100 किलो ये चाहिए, ऐसा करके पूरे साल में कोई 20 लाख का धंधा करता है, कोई करोड़ का करता है, कोई 5 करोड़ का भी करता है। तो ये कस्टमर पोर्टफोलियो में हमने फोकस किया, उसको सर्विस देना स्टार्ट किया। हमारी टैगलाइन रहती है कि जो भी हमारे पास उसको जो चाहिए वो मटेरियल विदिन 24 आवर में उसको हम हैंड ओवर करते हैं, या मैक्सिमम 48 आवर में हैंड ओवर होता है अगर कहीं दूर होता है तो उस तरीके का कस्टमर को हमने ट्रैप किया, एस्टेब्लिशमेंट किया, उसको पूरा सर्विस दिया, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया। फिर हमने सोचा कि आज बिग लेवल की जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं इंडिया में, जैसे गिनी चुनी 30-40 कंपनियां हैं, तो वो कंपनी के साथ अप्रोच हम ऑलरेडी उससे परचेज कर ही रहे थे। तो हमें वहां भी स्टार्ट किया कि ये कंपनी भी कुछ ले, तो उसमें से भी हमें ये एनालिसिस करके क्रस निकला कि इंडिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि 100% वो खुद फॉर्मुलेशन करती है जो प्रोडक्ट वो B2C में कर रहे हो। तो वो आइडेंटिफाई किया कि भाई ये कंपनी को ये 2 प्रोडक्ट चाहिए, दो कंपनी को ये प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर हमने वहां अप्रोच करके आज सब कंपनियों के साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट किया। हम जो कंपनी से परचेज भी कर रहे हैं उस कंपनी को हम सेल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का इस इंडस्ट्री में हमें B2B में काफी लिवरेज मिला। तो क्योंकि हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो हमारा परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो गया, तो उसी वजह से हमें B2C में भी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में भी प्लस हुआ, और B2B में मार्केट के साथ जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। आज हम 100 प्रोडक्ट कर रहे हैं B2B और B2C में, और जो कस्टमर को चाहिए वो ऑलवेज हमारे पास रहता है। हार्डली 2-5% केस में ऐसा होता है कि जो टेक्निकल का किसी प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो हमारे पास ना हो, बाकी ऑलवेज हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैंने पहले बताया कि हमको यहाँ बैठे क्रॉप विजुलाइज होता है, वो हमको पता है कि भाई ये समय अक्टूबर का चल रहा है तो अभी सोइंग सीजन चल रहा है। जैसे अभी चने का, क्यूमिन का, वीट का, ये सारा लहसुन प्याज सबका सोइंग पीरियड चला, तो सोइंग पीरियड में मोस्टली कौन प्रोडक्ट चाहिए, तो कि जो स्टार्टिंग में हर्बिसाइड लगता है या सीड ट्रीटमेंट वाली प्रोडक्ट है उसी का चाहिए। तो हम ऑलवेज वो इन्वेंट्री हमारे पास मिनिमम लेवल मेंटेन करते हैं, और वो जो कस्टमर को चाहिए वो डे टू डे हम उसको सप्लाई या सर्विस देते हैं। तो उसी बेज पे वो कस्टमर पोर्टफोलियो हमारे पास बढ़ता गया, और सभी को एक लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप हुआ कि नहीं, धर्मज के साथ काम करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा, और क्वालिटी के साथ साथ हमको पूरा सर्विस भी मिलेगा, और डिसिप्लिन में हम काम कर पाएंगे। तो इस बेज पे हम ये B2B का जो बिगर हमारा पोर्टफोलियो है उसको हमने यहाँ लेवल तक लाए, और यहाँ से भी आगे हम बढ़ाते जाए। फिर क्या हुआ, पहले हम लास्ट ईयर तक फॉर्मुलेशन का काम कर रहे थे,
अब कई कस्टमर जो मैंने बताया B2B के भी ऐसा है कि उसके पास कुछ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन भी करते हैं, कुछ बाहर से भी लेते हैं। तो जो टेक्निकल्स उसको चाहिए वो टेक्निकल भी हम बनाना चालू किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हमने साइका वाला प्लांट में। तो हम लास्ट एक साल में 8 टेक्निकल खुद का बनाना स्टार्ट किया, तो वो भी B2B जो पाइपलाइन हमारे पास रेडी था उसी में वो प्रोडक्ट भी सेट हो गया है। तो उस तरीके से हम इस जर्नी में यहाँ ला पाए उसको। या थैंक यू सो मच रमेश भाई, ये काफी डिटेल में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इससे काफी इंसाइट्स क्लियर मिलती है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके जा रहे हो। लेकिन अब मैं एक वापस इंडस्ट्री रिलेटेड चैलेंजेस की बात करूंगा। जैसे अगर अपने पिछले कुछ सालों में ग्लोबल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को देखते हैं तो इसने काफी हाँ चैलेंजेस फेस किए हैं, खास करके FY23 FY24 में, जैसे कि हाँ सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग और प्राइसिंग प्रेशर। तो इन चैलेंजेस का थर्मज क्रॉप गार्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और कंपनी ने इन्हें नेविगेट करने के लिए कौन से स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट किए? अगर आप थोड़ा उस पर विस्तार से बताओगे तो काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। वो जो मैंने बताया इन्वेंट्री, एक तो मेनली जो इस इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस रहता है इन्वेंट्री का और डेब्टर का। दो चीज ऐसा होता है कि उसको अगर कंट्रोल आप ना करो तो वो सस्टेनेबल करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्वेंट्री हम प्लानिंग के हिसाब से मंथ टू मंथ प्लान करते हैं कि भाई ये जो जरूरत है उतनी चीज हम, जैसे इन्वेंट्री का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, जो सबसे सस्ता चीज है वो हम 3 महीने का ले लेते हैं, फिर हम उसी बेच पे 1 महीने 2 महीने का स्टॉक रखते हैं, और लास्ट में जाके जो एआई है मतलब टेक्निकल की रिक्वायरमेंट होती है वो मंथ टू मंथ प्लान करते हैं, और उसका प्राइस सिनारियो भी देखते हैं। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का एक सीजन होता है। अगर वो सीजन स्टार्टिंग में प्राइस सही रहेगा, फिर जैसे सीजन खत्म हो जाएगा तो वो प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। कोई किसके पास हैवी इन्वेंट्री बच गया है तो वो कम प्राइस करके निकालेगा, तो उसकी इफेक्ट मार्केट में आएगी। तो हम वो नीड बेस पे प्लान करते हैं इन्वेंट्री का, तो मंथ टू मंथ हम उसका रिक्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। और कई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो साल में एक ही बार चलता है, तो उसका हम परफेक्ट प्लानिंग रखते हैं कि भाई हमें ये 10,000 लीटर या 20,000 लीटर ही करना है, अपने पास 1 किलो लीटर का स्टॉक नहीं बचना चाहिए। सेल थोड़ा लूज हो तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इन्वेंट्री हम नहीं रखेंगे। क्योंकि इन्वेंट्री से क्या होता है, वो पड़ा पड़ा दुख देता है, और बाद में जाके हमें लॉस करके कभी बेचना पड़ता है, या 1 साल तक संभालो तो इन्वेंट्री, उसका फाइनेंस कॉस्ट, उसका एक्सपायरी का पीरियड, फिर नेक्स्ट ईयर नया प्राइस क्या है क्या नहीं। तो इन्वेंट्री में हमारा डे टू डे फोकस रहता है कि उसमें हमें कहीं अलाइन हमारा गड़बड़ा ना जाए, तो उस बेस पे हम सेल भी लूज नहीं होने देते और इन्वेंट्री भी नहीं ज्यादा रखते। तो उस बेस पे इन्वेंट्री हो गया। दूसरा है डेप्टर। तो डेप्टर हम डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। जैसे हमारा B2C में हमने NCR पॉलिसी अप्लाइड कर रखी है, नेट कैश रेट। तो आज बिलिंग किया, एक क्रेडिट कार्ड जैसा हमने सिस्टम बनाया है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितना भी बिलिंग हो, जो कस्टमर आइडेंटिफाई किया है, एग्रीड किया है, उसके साथ हमने रिटर्न में लिया है कि भाई ये हमारा NCR का पॉलिसी है, ये नेट रेट मिलेगा, उसमें नो स्कीम, नथिंग डिस्काउंट, कुछ नहीं रहेगा। और 30 तारीख को पेमेंट हमारा अकाउंट में आपको डालना होगा, अगर नहीं डालोगे तो उसमें पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और हमारा जो क्रेडिट का रेट है वो अप्लाइड होगा। तो ये क्लियर ट्रांसपेरेंस वे में हम काम करते हैं कस्टमर के साथ। और हमारा टैगलाइन भी है, जो कमिटमेंट कर सकते हैं वही कमिट करो, रिटर्न में कमिटमेंट करो, कोई ओरली नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी रख के काम करना कि भाई ये हमारा पॉलिसी। अगर आप उसमें नहीं कर सकते हो तो अपना क्रेडिट पॉलिसी है ही, बराबर। तो ये हम कैश फ्लो वहां से इजी मैनेज करते हैं। आज भी हम B2C में हमारा 40-50% कैश बिजनेस जनरेट करते हैं उसी तरीके से, तो हमारा कैश फ्लो मैनेज होता रहता है। और B2B में हम कस्टमर के साथ क्लियरिटी करके ही करते हैं, और जो छोटे कस्टमर है सब PDC लेके काम करते हैं, और हमारा जानकार है कि भी पता है तो उसका क्रेडिट लिमिट क्या होना चाहिए, क्रेडिट डेज कितना होना चाहिए, उसी वे में हम उसके साथ बिजनेस प्लानिंग करके स्टार्टिंग से, और क्रेडिट डेज हमारा मेंटेन करते हैं। तो ये बिजनेस का, एग्रोकेमिकल का, ये दो मेजर पैरामीटर है, डेब्टर और ये इन्वेंट्री। तो उसको हम उस तरीके से मैनेज करते राइट। तो आपने अपने जवाब में सीजनैलिटी की बात की थी कि हैं। एग्रोकेमिकल बिजनेस जो है वो काफी सीजनल है। तो हाँ अगर अपने देखते हैं तो
Q2 और Q3 जनरली एग्रोकेमिकल कंजम्पशन के लिए क्रूशियल होता है। तो हाँ। मॉनसून्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने डिमांड फोरकास्ट और ग्राउंड लेवल कंजम्पशन पैटर्न को कैसे हमको इम्पैक्ट करता है, और किस तरह से हम लोग डील करते हैं इससे, हम्म। अगर उसके ऊपर थोड़ा बताए। हमारे जैसे प्लानिंग और सिस्टम ऐसा रहता है, वो जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल करना तो मुश्किल है। तो उसमें एक वे निकालते हैं कि भाई लास्ट 2-3 साल का हमारा बिजनेस, मॉनसून की सिचुएशन, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, कभी ड्रॉट स्पेल आ गया तो भी तकलीफ है, ज्यादा एक्सेस रेन हो गया तो भी तकलीफ है, पेस्ट अटैक नहीं हुआ तो भी तकलीफ है। तो उन सब में से एक बीच वाला रास्ता निकालते हैं कि भाई मिनिमम हमें अपने लेवल पे ये प्लानिंग करना है, फिर अपॉर्चुनिटी बेस पे हम उसको कैच करते रहते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। तो वो अपॉर्चुनिटी जहां जहां है, जो जो प्रोडक्ट का है, उसको हम इमीडिएट प्लानिंग करके उसका प्रोडक्शन करके मार्केट को सर्व करते हैं। वो ऑलवेज कंटीजेंसी बेस पे चलता है। मिनिमम प्लान तो एक रहता है, बाकी का हम कंटीजेंसी बेस पे उसको मैनेज करते हैं। और हर एक साल कुछ न कुछ नया सीख दे के जाता है। जैसे लास्ट ईयर अगस्त महीने में पूरा ड्राई स्पेल था, तो बिजनेस कम था। बारिश नहीं है, तो बारिश नहीं है तो नेचुरली ये पेस्ट अटैक कम रहेगा और स्प्रेइंग कम होगा। और अगर इस साल देखो तो अगस्त सितंबर में ज्यादा एक्सेस रेन होगी, एक्सेस रेन की वजह से स्प्रे नहीं कर पाए तो भी सेल्स कम रहा। तो ये सिचुएशन हमारे पिछले 30 साल में कुछ न कुछ तो हमें अनुभव दे के जाता ही है। तो ये इसीलिए हम, मैंने बताया, मंथ टू मंथ प्लान करते हैं और कंटीजेंसी बेस पे है हम प्लान करते हैं। हमारे पास सारा वो रहते ना किचन में कि भाई वो सब तबेला तैयार है, हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखा के भी नहीं ये अब आगे उसको कैच करना है तो इमीडिएटली हम प्लान करके उसका प्रोडक्ट करके पैकिंग करके मार्केट में सर्व कर देते हैं। B2B में कोई भी बड़ा चैलेंज आता है तो भी उसकी हमारे पास ऑलवेज तैयारी रहती है कि भाई ये प्रोडक्ट है तो ऐसा करके हमें देना है। तो उसी बेच पे हम ऑलवेज कंटीजेंसी पे उसको मैनेज करते हैं। और ये बिजनेस ही ऐसा है, सीजनल बिजनेस है। और कई सिचुएशन जैसे वेदर कंडीशन अपने हाथ में नहीं है, तो उस बेज पे हम उसका एनालिसिस पक्का करते हैं और वो प्लानिंग करके हम आगे चलते हैं। राइट। सो अब पहले का समय जैसा नहीं है। जैसे हम कोरोमंडल में काम कर रहे थे, एक साल में एक ही प्राइस लिस्ट बनता था। अप्रैल मई में प्राइस लिस्ट बनता था, मार्च तक चलता था। आज हर दिन कुछ नया नया आता है, नया नया चेंजेस करना पड़ता है। और वॉलेटिलिटी की वजह से कभी प्राइस अप हो गया, कभी डाउन हो गया, कभी कोई प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो गया, कभी कोई एक्सेस हो गया। तो उस बेज पे हम प्रैक्टिकल वे में मार्केट के साथ, समय के साथ उसको अलाइन करते जाते हैं और चलते जाते हैं। यस शिवम, आपके पास शायद कुछ क्वेश्चन है आप। सर बस दो क्वेश्चन है लाइक इसके रिलेटेड। सो ये सीजनलिटी और वर्किंग कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, तो आपका जो मतलब हम लोग जनरल अजम्पशन रहता है कि Q2 इज अबाउट सेल्स और Q3 में कलेक्शन रहता है आपका। हम्म। सो ये जो अनइवन मॉनसून्स की वजह से क्या हमारी प्लानिंग पे कुछ इम्पैक्ट रहता है? इसमें जो भी प्लान करते हैं उसमें कभी नहीं भी हो पाता। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भाई अगस्त सितंबर में जनरली हाईली इंसेक्टिसाइड का कंजप्शन का पीरियड होता है कि भाई लार्वा के लिए, सकिंग पेस्ट के लिए कॉटन ग्राउंडनट में स्प्रे होता है, लेकिन बारिश हुआ तो नहीं हो पाया। बराबर। कलेक्शन का टाइम देखो तो कलेक्शन में हम नहीं मानते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है। एक बहाना मैंने बताया ना, हम कैश में भी बिजनेस करते हैं। और कलेक्शन के पीरियड में भी कलेक्शन का, जैसे आप देखो तो ये अभी कलेक्शन का पीरियड है, नवंबर महीना द पीक पीरियड। जो जो अपना ऑल ओवर इंडिया की आप बेसिक साइकिल देखो, तो जो खरीफ सीजन है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का 2 क्वार्टर जो है, उसमें मेनली कंजप्शन का पीरियड रहता है। बराबर है। सर्व में स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे मार्च अप्रैल से हमारा एडवांस बुकिंग स्कीम हो जाता है। जो कस्टमर है अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे हम करते हैं वो सब लोग ऐसा कर लेते हैं, तो हम स्कीम निकाल के कैश में बिजनेस कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे जून जुलाई से क्रेडिट देना चालू होता है। तो जैसे क्रेडिट जून जुलाई अगस्त 3 महीना जो पीक पीरियड होता है सितंबर तक का, उसमें क्रेडिट का बिजनेस होता है। तो उसका रिकवरी स्टार्ट हो जाता है नवंबर दिसंबर में। बराबर। तो खरीफ में हमने जो भी बिजनेस किया है तो वो हमारा नवंबर दिसंबर तक कलेक्शन हो जाना चाहिए।
अगर कलेक्शन नहीं होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो कहीं ना कहीं उस कस्टमर में इश्यू है, कहीं कोई मतलब कस्टमर बेकार है या उसके पास इन्वेंट्री पड़ा है या कोई और तकलीफ, तो उसका पोस्टमार्टम हम स्टार्ट कर देते हैं। पर 70-80% कलेक्शन अपना दिसंबर तक क्लीन हो जाना चाहिए, तो ही हम आगे रबी का बिजनेस कर पाते हैं। और ये नवंबर एंड में दिसंबर से रबी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो उसका मेन कंजप्शन का पीरियड दिसंबर जनवरी 15 फरवरी तक रहता है। फिर उसका मार्च से कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल में उसका कलेक्शन जो रबी में बिजनेस किया है वो क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके का रबी और खरीफ दो दो सीजन है मेन इंडिया में चलती है। और खरीफ में ये थोड़ा रेनफॉल का इश्यू रहता है कि भाई कभी बारिश ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो उसी वजह से प्लानिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। पर रबी में जनरली सिक्योर होता है कि पता है कि भाई उसमें कोई इन एंड बर्ड्स नहीं आता है। भाई ये अपना वीट का सोइंग हुआ है तो उसमें ये हर्बिसाइड जाना है, ये पेस्टिसाइड जाना ही जाना है, तो उसमें इतना इश्यू नहीं होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड भी फिक्स होता है। तो उसी बेस में हम प्लानिंग करते हैं कि भाई ये हमारा सेल्स का टाइम है, ये कलेक्शन का पीरियड है, तो साथ साथ में दोनों पैरेलली चलता रहता है। राइट। सो जस्ट लाइक एट द रिस्क ऑफ आस्किंग फॉर अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, तो अगर आप जैसे आपने बताया कि रबी सीजन जो रहता है दैट इज लाइक वेरी स्टेबल, लाइक डिमांड इज समवॉट प्रिडिक्टेबल। या तो अगर हम लोग अभी देख रहे हैं, सो मानसून्स थोड़ी अभी लाइक इवन अगर हम देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में भी थोड़ी थोड़ी जगह पे बारिश हुई है। सो लाइक क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि लाइक इस बार का जो रबी सीजन आएगा, गिवन दैट मानसून्स हैव आल्सो लाइक स्ट्रेच, तो लोगों को ये जो लाइक इन टर्म्स ऑफ पानी देना फील्ड्स को एंड वो सब, दैट इज आल्सो लाइक हेल्प। तो डू वी सी दैट कि हमको जो अपकमिंग क्वार्टर्स रहेंगे आपके, दैट विल बी लाइक मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? या लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल का रबी सीजन अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बताया था कि ड्राई स्पेल था, इतना सफिशिएंट रेनफॉल नहीं था, तो सोइल में मॉइस्चर कम था, वाटर लेवल कम था, रिजर्वोयर कम था। तो इस बार ऑल ओवर इंडिया में पोजीशन देखो तो फुल ऑफ रिजर्वोयर है, वाटर लेवल अप है। तो हमने जो अभी तक का देखा है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है, उसमें कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि सोइंग नहीं होगा। क्रॉपिंग पैटर्न जो रबी में लगता है, मेनली वीट लगता है, ग्राम लगता है, ओनियन लगता है, क्यूमीन लगता है, प्याज लगता है, वेजिटेबल्स लगते हैं, शुगर केन लगते हैं, मेज लगते हैं। तो ये ऑर्चार्ड में भी मैंगो है, पोमो है, ग्रेप्स है। तो ये कहीं में कोई ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है और सोइंग नहीं हुआ, बराबर। बाकी जो कई गुजरात का एरिया काफी ऐसा एरिया है, राजस्थान का एरिया ऐसा है, मध्य प्रदेश का ऐसा है कि वहाँ पानी नहीं है तो सोइंग नहीं होता। तो इस बार ये इतना लार्ज स्केल में सोइंग होना है रबी में, तो नेचुरली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कंजप्शन ज्यादा ही रहेगा। तो उसमें कोई डाउट ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया खरीफ की जगह यहाँ रबी में कोई ऐसा हर्डल नहीं है कि भाई ज्यादा एक्सेस बारिश हो गया, पानी नहीं है। मेन तो पानी चाहिए, तो पानी तो है सफिशिएंट, बाकी तो सोइंग करना है और सब दूसरे फैक्टर कोई उसको मायने नहीं रखते इतना। तो ये अ, हमें तो फुल कॉन्फिडेंस है कि रबी सीजन अच्छा रहेगा, और हम जो खरीफ में थोड़ा शॉर्टफॉल हुआ है उसमें अच्छी तरह से रिकवर कर पाएंगे। उसमें कोई अपने को एज ऑन डेट कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें अपने को कोई डाउट हो। राइट। सो रमेश भाई, अभी तक हमने इंडस्ट्री लेवल पे और थोड़ी सी सीजनैलिटी के ऊपर में डिस्कस किया है। अब हम हाँ। लोग थोड़ा डीप डाइव करेंगे धर्मज के एक्चुअल बिजनेस पे और बिजनेस वर्टिकल्स के ऊपर में। तो अगर जितना हम लोग समझते हैं, और आपने बहुत अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन और एनुअल रिपोर्ट में भी वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि हमारे तीन मेन बिजनेस वर्टिकल है, या जिसमें से एक है ब्रांडेड फॉर्मुलेशन, एक या है इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशन, या और एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो या क्या आप इन वर्टिकल्स के बीच के की डिफरेंसेस डिफरेंसेस, इनके टारगेट मार्केट्स और धर्मज के ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में इनके योगदान समझा हम्म सकते हैं कि कितना कितना कैसे क्या है? हम्म। जैसे अभी हमारा रेशियो देखो तो 25 to 30% हमारा B2C बिजनेस है। बाकी आप B2B मान लो, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, फॉर्मुलेशंस हो, कस्टमर तो एक ही है, बराबर। तो ये तीनों वर्टिकल्स में, जैसे ये इन एक्टिव इंग्रेडिएंट का वर्टिकल तो हमने इस साल ज्वाइन किया है, मतलब हमारा प्लांट, नया प्लांट चालू किया हमने, बिजनेस इस बार चालू किया, और हमारे पास कस्टमर पोर्टफोलियो था उसी में हमने अलाइन किया। और मार्जिन वाइज नेचुरली है, B2C में मार्जिन अच्छे रहते हैं, B2B में
दो टाइप के कस्टमर है, जहाँ बिग कस्टमर है वहाँ मार्जिन लेवल थोड़ा कम रहता है, स्मॉल कस्टमर है तो वहाँ हम मैनेज करते हैं मार्जिन, क्योंकि छोटा छोटा क्वांटिटी जाता है उसको सर्विस देते हैं। तो ये तीनों वर्टिकल हमारे लिए तो इम्पोर्टेंस है। फिर भी हम ज्यादातर B2C में फोकस करते हैं, और B2C में भी हमने डिटेलिंग जो डिग किया है कि सपोज हम 100 प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 100 प्रोडक्ट में हमारे पास 10 प्रोडक्ट ऐसा है कि हम उसको फोकस नाम रखा है, क्योंकि उसमें मार्जिन अच्छे है, नंबर ऑफ प्लेयर कम है, और हमारी सुपर स्पेशलिटी इसमें है कि हम उसको मार्केटिंग एक्टिविटी करके फार्मर तक पहुंच के हम उसको प्रमोट करके बिजनेस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव भी प्रमोशनल एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। तो वहां से हमारा ब्रांडिंग डेवलप करते हैं। उस ब्रांड के नीचे हमने दूसरा सेगमेंट रखा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, तो उसमें थोड़ा मार्जिन लेवल कम होता है, तो उसको हम साथ साथ करते हैं। और लास्ट में रहता है जेनरिक प्रोडक्ट, जो मार्केट के प्राइस से हमें बेचना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्लेयर ज्यादा है, और वॉल्यूम भी उसका बड़ा है। नेचुरली है, जहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा वहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा, वहाँ मार्जिन कम होगा। और जहाँ वॉल्यूम कम होगा और उसका मार्केटिंग एक्टिविटी करके हम करते हैं, वहाँ नेचुरली वॉल्यूम ज्यादा, मार्जिन ज्यादा रहेगा। तो ये B2C की हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। और हमारा ऑल जितने भी 220-25 एम्प्लॉयज है उसको भी क्लियरिटी रहता है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर हमें ऐसे काम करना है, ये प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे काम करना है। ये B2C में हम दो कंपनी को फॉलो करते हैं, एक बयर है, एक धनुका है। जो हमने सीखा है मार्केट एनालिसिस करके कि मार्केटिंग एक्टिविटी कैसे किया जाए, उसका टूल्स क्या है और वो कैसे करना चाहिए। आज हर एक एम्प्लॉयज को अपने को क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में क्लियरिटी है कि आज हमें क्या करना है, बराबर। तो मैंने बताया क्रॉपिंग पैटर्न हमें पता है, क्रॉप का सिनारियो पता है, उसका स्टेज पता है, तो उस पेज में कौन प्रोडक्ट के ऊपर अभी काम करना है, तो उस पेज में हमारा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके फार्मर को हम उसका रिजल्ट दिखाते हैं। फिर वहाँ फील्ड डे करके नंबर ऑफ फार्मर इकट्ठा करके उसको दिखाते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट है, आप इसको ऐसे यूज करो। उसको फार्मर को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। और दूसरा, हम फार्मर मेगा फार्मर मीटिंग करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई ये धर्मज का ये प्रोडक्ट है, ये क्रॉप में, ये पेस्ट में आप ऐसा यूज करो। तो ये तीन टूल्स को हम फार्मर लेवल पे एक्टिविटी पे काम करते हैं। फिर हम फार्मर का टेस्टिमोनियल लेके सोशल मीडियाज में हम पोस्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा रीच बना रहता है। और नंबर ऑफ फार्मर, हमारे पास फार्मर डेटा बैंक बनाया है। हमने जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हम फार्मर को सीधे व्हाट्सएप करके उसको मैसेज करके हम उसको गाइड करते रहते हैं, उसको भेजते रहते हैं। तो ये एक एक्टिविटी हो गया B2C में। दूसरा B2B में भी जो छोटे छोटे कस्टमर है उसको भी हम एक बिजनेस का पोर्टफोलियो समझाते हैं कि भाई आपके पास इस तरीके का इस एरियाज में काम करते हो तो आप ये नया प्रोडक्ट ऐड कर लो, जैसे हम B2C में करते हैं। तो उसके पास नया प्रोडक्ट हम सेट करवाते हैं, उसको चालू करवाते हैं, और उसका भी बिजनेस ग्रो हो हमारे साथ। तो ये B2B वाले कस्टमर के साथ भी हम उस तरीके से गाइडलाइन देके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये Right. हमारा वर्टिकल रहा। और इनग्रेडिएंट जैसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसमें जनरली जो जो टेक्निकल वो नहीं बनाते वो हम बनाते हैं, तो उसके साथ हम इस तरीके से अलाइन करते हैं, ये टेक्निकल हम आपको देंगे, आप जो बना रहे हैं वो आपसे लेंगे। उस तरीके का सिनर्जी बिठा के हम बिजनेस दोनों साइड से बढ़े, वैसा कोशिश करते हैं। राइट, राइट। लेकिन रमेश भाई, अगर आपसे ऐसे पूछे कि हमारे ये जो तीनों बिजनेस वर्टिकल है, इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, या हम दूसरे प्लेयर्स के सामने हम लोग क्या अलग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं जिससे हम लोग अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके कि भाई धर्मज ये कर रहा है जो बाकी कोई नहीं करता है, ऐसा कुछ है इन तीनों वो वर्टिकल? मैंने बताया ना, जैसे हम हमारा सर्विस पार्ट है, सेल मार्केटिंग पार्ट्स है, जो हम कुछ अलग हटके कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जितने भी B2B वाले कस्टमर है उसका बैक ऑफ माइंड में क्लियरिटी है कि कहीं नहीं मिलेगा तो धर्मज से मिलेगा ही मिलेगा मटेरियल। तो उस तरीके का सिचुएशन है, और हम उसमें टाइमली सप्लाई करके इमीडिएट हम अपॉर्चुनिटी कैच कर लेते हैं। और B2C बिजनेस में भी हमारा जो मार्केटिंग टूल्स है वो उसी बेस पे हम फोकस करके डिमांड जनरेट करके करते हैं। तो नेचुरली हमारा नेटवर्क है उसमें उन लोगों को भी प्रॉफिट अच्छा रहेगा, और हमारे साथ आगे फ्यूचर में जुड़े रहेंगे और बिजनेस हमारा ग्रो कर पाएंगे। और
हम सेल्स का ड्राइव भी चलाते हैं। जैसे अभी रबी सीजन आने वाला है, तो अभी उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी वो हम एनालिसिस करके हमारे जो कस्टमर है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसको बोलते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में आपकी ये जरूरत पड़ेगी, हम अभी ये स्कीम दे रहे हैं आपको, उस तरीके से आप इन्वेस्ट करो, आपको अभी अभी से लेने के बाद ये फायदा रहेगा। फिर हम उसको लिक्विडेट कराने में भी हेल्प करते हैं। तो ये पूरा थीम हमने सेट कर रखा है B2B और B2C में, तो उसकी वजह से आगे सब ग्रो कर पाते हैं। Right, right. So, Ramesh bhai, next question is on domestic और international market. तो अपने धर्मज में हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट पर अपना फोकस कैसे बैलेंस करते हैं, प्लस कंपनी के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड करने के लिए कौन सी की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आपको आज के दिन दिखती है? ग्लोबली आप देखो तो ग्लोबली भी इतना ही कंपटीशन है। तो हमने जैसे स्टार्ट किया, तो जो कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इजी है वहाँ हमने स्टार्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जैसे 30 कंट्रीज में हमारा बिजनेस है। और जो बड़ा एरियाज है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, लाइक आप लाटम देख लो, ब्राजील देख लो, USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ हमने सब जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अप्रोच स्टार्ट कर दिया कि भाई आने वाले, क्योंकि उसमें 3-4 साल लगता है। तो ऑलरेडी 1 साल पहले से हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब आने वाले 1-2 साल में हमारा रजिस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो वहां से हमें बिग अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि कई कई कंट्रीज है बहुत बड़ा पेस्टिसाइड का कंजप्शन है। तो उस कंट्री में हमें हमारा जो प्रोडक्ट हमने टेक्निकल इंग्रेडिएंट वाला स्टार्ट किया है, तो वो वहाँ सब हम प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वहाँ हमारा बिजनेस आगे कैसे ग्रो हो उस तरीके की कार्यवाही अभी से हमने स्टार्ट किया है। रिसेंटली हमने लास्ट बोर्ड मीटिंग में ब्राजील में हमने सब्सिडरी भी अप्रूव कर दिया कि हमें अब वहाँ हमारा ब्राजील में सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी फास्टेस्ट हो जाएगा, और हम जल्दी वहाँ ब्राजील और लैटिन कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है, अपॉर्चुनिटीज है, उसको डे बाय डे हम सेट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक। नहीं, इंटरेस्टिंग है रमेश भाई, जो आपने ब्राजील वाली सब्सिडरी का नाम लिया, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन पहले अभी नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन हम लोग आपके ये नए साइका प्लांट के ऊपर आई थिंक शिवम पूछना चाहेंगे। या शिवम, कोई और क्वेश्चन है तो आपके पास, आप वो हाँ भी नहीं, पूछ। ये लाइक जोग्राफिकल एक्सपेंशन रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। सो अभी आई थिंक लास्ट 1-2 साल में लाइक वी हैव बीन एक्सपांडिंग टू, लाइक हमने राजस्थान में किया, एंड देन लाइक वी आर आल्सो लाइक मूविंग टुवर्ड्स साउथ अभी। तो आपने आई थिंक प्रीवियस कॉन कॉल में भी बताया था कि आपको लाइक एक रीजन से रेवेन्यू मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है आने में। हाँ। एंड ऑल्सो अगर हम लोग देखें तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड एक रहा हुआ है गुजरात, हम्म। because like geographically also like it is like logistically also like it is very feasible। तो ये जो हमारी क्या बोलते हैं एक डिफरेंशिएटेड सेल्स स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम लोग लाइक बहुत हैंड्स ऑन रहते हैं फार्मर्स के साथ, हम्म। तो क्या हम सेम फोकस सेम इंटेंसिटी से बाकी ज्योग्राफीज के फार्मर्स से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं? लाइक आपका अगर एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सके कुछ इसमें। जैसे हमने गुजरात को रोल मॉडल बनाया है, पहले से हम जो कह रहे हैं कि भाई हमारा आज टॉप 10 में गुजरात में हम हैं। तो उसी बेज पे हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, जो नियर बाय स्टेट है वेस्टर्न पार्ट में, और हाईली पोटेंशियल मार्केट है चारों स्टेट मिला के, तो उसी स्टेट में भी हम ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी कर रहे हैं और बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में भी हम अच्छे लेवल पे है, मध्य प्रदेश में भी एक हमने जो प्लान हर साल करते हैं, तो उसी बेस पे राजस्थान भी हमारा ग्रो हो रहा है, मध्य प्रदेश भी ग्रो हो रहा है, और महाराष्ट्र भी ग्रो हो रहा है। क्योंकि ये एक्टिविटी एक साथ सब जगह पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतने एक्सपेंसेस लगेंगे, इतना मैन पावर लगेंगे। तो वन बाय वन स्टेट सेट करते जा रहे हैं, और उसी में उस सिस्टम को सेट कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट ईयर दूसरा स्टेट लिया, फिर तीसरे स्टेट लिया। उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम पान इंडिया में आने वाले, मतलब हमें उसमें और, जैसे हमने टारगेट एक विजन बनाया है 2000 करोड़ का, तो 2030 तक मैक्सिमम एरिया में हम इस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाइड करके हम B2C स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। सर और लाइक आपने पहले भी बताया कि रीजन वाइज और क्रॉप वाइज और सॉइल वाइज आपके प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सपांड करेंगे तो हमारा लाइक लाइक एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्ट रेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा।
तो आने वाले टाइम में हम लाइक अभी आपके कितने प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, और आने वाले टाइम में लाइक आप क्या सोच रहे हैं कि आप किस अग्रेसिवनेस से अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल बढ़ाएंगे? प्रोडक्ट डिपेंड करता है क्रॉप पे। जो क्रॉप है, सपोज वीट है, तो वीट इंडिया में कोई भी कोने में हो, प्रोडक्ट तो वही यूज होगा, जो गुजरात में होगा वही ओके। मध्य प्रदेश में होगा, वही महाराष्ट्र में होगा। तो एक प्रोडक्ट दूसरा एरिया ऐड करने से सारा नया प्रोडक्ट नहीं हो जाता, बराबर है। तो जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है वो तो चलता ही है, लेकिन जो वहाँ के एरियाज की अगर कोई खास प्रोडक्ट चलती है तो हम वो प्रोडक्ट उस एरिया के लिए ऐड करते हैं। जैसे हमने कश्मीर में बिजनेस वैली में स्टार्ट किया एप्पल के ऊपर, तो कई 2-3 प्रोडक्ट ऐसा था कि हमारे पास नहीं था और वहाँ की नीड थी, तो वो प्रोडक्ट हमारा पोर्टफोलियो में हमने ओनली कश्मीर के लिए ऐड किया। तो एप्पल की सीजन में हमें ये 2 या 3 प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट हम प्लान करके वहाँ अप्लाई कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। तो उस तरीके के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम एवरी ईयर अलाइन करते जाते हैं, बराबर। नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो कई प्रोडक्ट पुराना होता है कि जो मोलिक्यूल अब यूज नहीं हो रहा है, कि उसका अब डिमांड कम हो गया है, कि उसकी जरूरत नहीं है, तो वो प्रोडक्ट हम क्लोज भी कर देते हैं। और उसकी इकोनॉमी देख के मार्केट हमें, जैसे हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का हमने एक स्ट्रेटेजी रखा है कि हमारी मार्केटिंग टीम है, हमारा बजट हम करते हैं फरवरी में। तो मार्च से लेकर नेक्स्ट जनवरी तक या दिसंबर तक हम कंपाइल कर लेते हैं कि भाई ये आने नेक्स्ट ईयर हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, वो किसके साथ टाई अप करके हम कर सकते हैं, उसकी मार्केट साइज क्या है, कौन कौन क्रॉप में कौन कौन पेस्ट में वो अप्लाइड होगा, वॉल्यूम कैसा कर सकते हैं। तो ये कंक्लूड करके हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये 4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट हमें इस साल में लॉन्च करना है। तो उसी बेस पे हम वो प्रोडक्ट प्लान कर लेते हैं, और कई प्रोडक्ट का एनालिसिस फाइनेंस करके कर लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हम इतना वॉल्यूम नहीं कर रहे हैं, हमें इसमें इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमें 2 लेफ्ट भी करना है, मतलब बंद भी करना है। तो उस तरीके से एवरी ईयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम अलाइन करते रहते राइट। हैं। सो रमेश भाई, जैसे मैं बोल रहा था कि अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन मैं साइका प्लांट के ऊपर में आपसे डिस्कस करूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट केपेक्स हमने स्टार्ट किया है, या और ये हमें एक अलग दिशा में लेके जा रहा है। सो साइका एक्टिव इंग्रेडिएंट फैसिलिटी का कमीशन होना धर्मज क्रॉप गार्ड के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। तो क्या आप इस इन्वेस्टमेंट के पीछे की एक स्ट्रेटेजिक रैशनल और इस फैसिलिटी के माध्यम से एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन में कंपनी की पोजीशन में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे? तो बहुत थोड़ा बहुत तो आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, बट अगर थोड़ा हाँ, विस्तार से बताए तो काफी अच्छा रहेगा। वो मैंने बताया, जैसे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। हम पहले जो मार्केट से परचेज कर रहे थे वो हमने खुद बनाना स्टार्ट किया, बराबर। और साथ साथ में उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम इंग्रेडिएंट मतलब इंटरमीडिएट भी बनाते हैं, और उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी बनाते हैं, तो वो इंटरमीडिएट भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना कैप्टिव कंजप्शन है वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और जो इंग्रेडिएंट बनाते हैं वो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, B2B पाइपलाइन में भी दे सकते हैं, और अपना कैप्टिव कंजप्शन में जैसे B2C B2B फॉर्मुलेशन में यूज करना है तो वहां भी कर सकते हैं। तो ये राउंड द ईयर और सब क्रॉप में और एक्सपोर्ट में डोमेस्टिक में सब जगह पे वो चलने वाला प्रोडक्ट है, बराबर। 8 प्रोडक्ट हमने कॉमर्शलाइज किया अप्रैल ऑनवर्ड से अभी तक, और 2-3 प्रोडक्ट भी हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में उसमें उसी प्लांट में सेट किया जाए। क्योंकि हमने प्लांट ऐसा मल्टीपल प्लांट बनाया है कि कोई भी केमिस्ट्री हो तो माइनर चेंज करके हम उस प्रोडक्ट को सेट कर पाए, और उस प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी देख के हम उसको कैच कर पाए। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने का प्लान किया है हमने, और उसमें हमें वेल एस्टेब्लिशमेंट किया, जो 8 प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी कंसर्न्स, उसका यील्ड और मार्केट की जो नीड है वो सब फुलफिल किया, और वो प्रोडक्ट सब जगह पे हमने एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया, डोमेस्टिक में भी देना भी स्टार्ट किया। तो आने वाली जो फ्यूचर है उसमें भी हम, जैसे नया कौन प्रोडक्ट ऐसा है कि भी अब लेटेस्ट पैटर्न ऑफ हुआ है हम कर सकते हैं, तो उस तरीके से वो प्रोडक्ट हम अलाइन करते जाएंगे, और वैसे प्रोडक्ट को हम फ्यूचर में सेट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। राइट। सो रमेश भाई, साइका प्लांट के की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी क्या है, प्लस कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होंगे, और ये कैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ कैप्टिव यूज को केटर करेंगे?
उसके ऊपर थोड़ा अगर आप और डिटेल में बताओ तो अच्छा रहेगा। हमारा टोटल 8,000 टन का कैपेसिटी है, इंटरमीडिएट और टेक्निकल मिला के, बराबर, दोनों मिला के। तो उसी में मेजर जो प्रोडक्ट मैं बताऊँ आपको, तो एक साइपरमेथ्रिन है, अल्फा साइपरमेथ्रिन है, परमेथ्रिन है, लेमड़ा साइलोथ्रिन है, बाइफेंथ्रिन है, थायामिथोक्साम बनाया हमने, क्लोरेंट्रिनापोल बनाया, और उसके बाद टेबुकोनाजोल बनाया, और पाइमेट्रिजोन भी बनाया। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जैसे साइपरमेथ्रिन है तो 70% एक्सपोर्ट होता है। जैसे पायरेथ्रोड कोई भी ले लो आप, तो उसमें वो पायरेथ्रोड सेगमेंट में क्या है, इंडिया इज द डोमिनेंट इन दिस वर्ल्ड, बराबर। इंडिया से मोस्टली 60-70% पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट यहाँ से ही होता है, कोई भी आप पायरेथ्रोड ले लो, क्योंकि उसमें इस सेगमेंट में, इस केमिस्ट्री में चाइना नहीं है। उसका रीजन वहाँ लोकल कुछ भी हो सकता है, तो आज तक नहीं है, और आने वाले फ्यूचर में भी नहीं आ सकते, क्योंकि इंडिया की मास्टरी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कॉस्ट है, वो सब लाइन है। और बाकी का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें चाइना की मास्टरी है, जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी आज चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। काफी मॉलिक्यूल्स ऐसा है, जैसे ग्लाइफोसेट हो गया, पैराकोट, इमिडाक्लोपिड, ये सब चाइना से 100% यहाँ आता है। यहाँ कोई नहीं बनाता, बनाता है तो भी उसको वायबल नहीं होता। तो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट केमिस्ट्री और प्रोडक्ट सुना कि भाई ये हम, अब सपोज पायरेथ्रोड है तो हम उसमें एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सकते हैं, उसका इंटरमीडिएट है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ डोमेस्टिक में भी सारा B2B पाइपलाइन में हम उसको सेल करते हैं, और उसके बाद हम फॉर्मुलेशन करके भी B2B में देते हैं, फिर हम फॉर्मुलेशन करके अपनी ब्रांड B2C में भी बेचते हैं। तो ये प्रोडक्ट पूरा इस तरीके से हमने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। तो वैसा प्रोडक्ट हम आगे आगे नया नया डेवलप करते जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना के अपना पूरा कैप्टिव कंजप्शन को बढ़ाएंगे, और फॉर्मुलेशन बिजनेस बढ़ाएंगे, और आगे एक्टिव इंग्रेडिएंट बिजनेस भी ग्रो करेंगे, और एक्सपोर्ट भी चलेगा। राइट। और आई थिंक शिवम के पास कुछ क्वेश्चन है, तो शिवम आप पूछ सकते हो। सर आई थिंक हमने ये प्लांट जनवरी में आई थिंक कमीशन और स्टार्ट किया। हाँ uh, और करंट लेवल्स आई थिंक आपने कल कॉनकॉल में अबाउट 40 to 50% का आपने बताया कितने यूटिलाइजेशन है। हाँ हाँ सो आई थिंक आप अगर थोड़ा प्रोजेक्शन दे सके कि आई थिंक वी ऑल्सो क्या बोलते हैं, हमारे फिक्स कॉस्ट भी आई थिंक आपने बताया कि H1 में जो है वो H2 में आई थिंक सिमिलर रहेंगे। तो हाँ। थोड़ा आप वो भी ट्रेजेक्टरी बताएं कि आप कब तक ब्रेक इवन रीच करेंगे, और लाइक हम लोग कब देख सकते हैं कि ये पीक ऑप्टिमाइजेशन लेवल पर प्लांट रन करेगा। वो आने वाले, हमें अभी और 3 साल लगेंगे उसको ऑप्टिमम लेवल पर लाने के लिए। हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो नेक्स्ट ईयर, हम जैसे उसका 225-30 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हम कैच कर पाएंगे। और उसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 3 साल तक हम उसको पूरा फुलफिल कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे इस साल हमने अराउंड 40% किया, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा, उसके बाद और बढ़ेगा। तो उस तरीके से प्रोडक्ट भी नया हम ऐड करेंगे, और कैपेसिटी भी जो है हमारी वो पूरा यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए, उसका देख के हम फ्यूचर में वो पूरा प्रोडक्ट है वो उसको एस्टेब्लिशमेंट करते जाएंगे। राइट राइट। उसका बिजनेस टोटल कैपेसिटी हमारा 400 करोड़ अराउंड है, जो सैका प्लांट है उसमें से हम कर सकते हैं। राइट। सो रमेश भाई, ये दो तीन क्वेश्चन के थ्रू आपने साइका प्लांट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से बता दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस रिलेटेड पूछेंगे, जिससे थोड़ा और अपने को डिटेल में पता चले। तो जैसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो सडन डिमांड स्लम्प और वोलेटाइल रॉ मटेरियल प्राइसेस है, जो मेनली क्रूड ऑयल से डिराइव होते हैं, हाँ। इसने एग्रोकेम इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट किया है। तो जेनरिक प्रोड्यूसर्स पेटेंटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के मुकाबले राइजिंग कॉस्ट को पास पास ऑन करने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हाँ। उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, राइट। सो हम्म। कंपनी ने फ्यूचर इनपुट कॉस्ट फ्लक्चुएशन के रिस्पॉन्स में प्राइसिंग एडजस्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए हैं अभी? जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो नेचुरली आउटपुट कॉस्ट भी, आउटपुट प्राइस भी बढ़ता ही जाता है, बराबर। कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई हमारा कॉस्ट बढ़ गया लेकिन हम प्राइस नहीं बढ़ा पाए। वो कोई भी में हो, B2C में हो, B2B में हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में हो, रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ता है तो नेचुरली उसका सेलिंग प्राइस भी बढ़ता ही है।
कहीं वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिचुएशन टू सिचुएशन। कई बार डिमांड कम है तो आप कितना भी प्राइस कम कर लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। पर डिमांड जहाँ होता है वहाँ प्राइस का दिक्कत नहीं आता है। वो प्राइस मतलब डिमांड के साथ साथ वो प्राइस भी बढ़ता रहता है और उसमें सस्टेनेबल मॉडल सेट होता जाता है। प्राइस मैंने पहले भी बताया, प्राइस आजकल कोई चीज का ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल प्राइस है, ऑलवेज वॉलेटेबल प्राइस है। उसमें हमें ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई कौन प्रोडक्ट का प्राइस किस तरफ से जा रहा है। तो उसी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके उस प्रोडक्ट के ऊपर हम आगे फ्यूचर देख के प्लान करते हैं। भाई कई प्रोडक्ट ऐसा ऐसा भी होता है कि भाई आने वाले समय में जरूरत ज्यादा है लेकिन अभी अवेबिलिटी कम है, तो उसका प्राइस नेचुरली बढ़ भी जाता है। तो उस तरीके से हम प्रोडक्ट थोड़ा एडवांस में प्लान कर लेते हैं। कोई प्रोडक्ट स्टेबल है, उसमें इतना इफेक्ट नहीं है, तो उस तरीके से मैनेज करते हैं। कई प्रोडक्ट में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है कि भाई अब सीजन खत्म हो गया, उसका डिमांड इतना नहीं रहेगा और स्टॉक लोगों के पास बहुत है, तो हम उसको नीड बेस पे रोज का रोज प्लानिंग करके लेते हैं। तो उस तरीके की स्ट्रेटेजी उसमें अपनाना पड़ता है, तो ही हम उसमें सरवाइव कर पाते हैं। राइट। तो अगर रमेश भाई आगे बढ़ते हैं इस पे, और हम लोग हिस्टोरिकली देखते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी लीन रहता था। हाँ और पर अगर आप रीसेंट टाइम्स का देखोगे तो ये बढ़ के अब 80 डेज तक पहुंच गया है। हाँ। और कंपनी ने जो टेक्निकल बिजनेस में एक्सपेंशन किया है, इसमें तो क्रेडिट पीरियड 120 दिन तक हो जाता है। सो हम्म। नए एनवायरनमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, और आगे स्पेसिफिकली फ्रॉम द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम्म। आपका टारगेटेड वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इस इंडस्ट्री में देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल मोस्टली 120 to 150 डेज रहता है, पर हम उसको 90 to 120 डेज मैनेज करेंगे प्रॉपर वे में, क्योंकि ये टेक्निकल इंग्रेडिएंट आने के बाद हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। क्योंकि उसमें एक तो प्रोसेसिंग समय लंबा है। आज आप कोई भी इंग्रेडिएंट डालोगे तो 10 दिन तो मिनिमम लगेगा उसको, 10 से 15 दिन बनाने में। फिर वो टेक्निकल इंग्रेडिएंट्स आता है बड़े कस्टमर में, वहां भी क्रेडिट पीरियड की जरूरत होती है। तो उसी बेच पे उसमें थोड़ा वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ेगा। पर हमारा टारगेट यही है कि 90 to 120 डेज ही मैनेज करना, उसके ऊपर हम उसको नहीं जाने देंगे। और उस तरीके से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और बाकी जो हमारा फॉर्मुलेशन और B2C बिजनेस है उसी में तो हम प्रॉपर वे में वही मैनेज करते हैं। जो बाकी ये टेक्निकल्स में थोड़ा इस तरीके का पीरियड बढ़ता है, क्योंकि कई रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसका भी प्लानिंग ऐसा रखना पड़ता है। प्लांट पूरा कंटिन्यू चलाने के लिए थोड़ा स्पेयर में भी रॉ मटेरियल रखना पड़ता है। तो उस वे में उसको थोड़ा उस तरीके से मैनेज करना। तो आपने रमेश भाई जो इंपोर्ट की बात की है, जनरली हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं मटेरियल्स, ये कौन सी कंपनीज कौन सी कंट्रीज से होता है जनरली? और चाइना से ही मेजर रहता है। चाइना से मिल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर पूछूं आपसे, तो कंपनी ने डेट पर रिलायंस रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी बनाई है, और अगले 3-4 सालों में हमने ये गाइडेंस दिया है कि डेट फ्री होने का टारगेट है हमारा। हाँ तो इस गोल को अचीव करने के लिए कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक तरफ तो डेट रिडक्शन की बात कर रहे हो, और दूसरी हाँ। तरफ आपका ग्रोथ प्लान भी है, प्लस केपेक्स नीड भी है। तो इस दोनों को आप कैसे बैलेंस करोगे? इसको बैलेंस जैसे अभी हमारे पास डेट देखो तो 82 करोड़ का डेप्थ है, डेट्स है, बराबर। तो वो हमारा जो भी एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें हम कम करते जाएंगे। और नया अपना कोई इतना एक्सपेंशन वाला अभी कोई प्लान रहा नहीं आने वाले 3 साल तक। पूरा हम इसको प्रॉपर वे में सेट करके फिर ही नया कुछ सोचेंगे। तो ये जो हमारे पास मार्जिन प्रॉफिट आएगा उससे डेट कम करेंगे। और डेट में क्या होता है कि ये एवरी मंथ मतलब जो उसका टर्म लोन का साइकिल है वो भी कम होता जाएगा, और आने वाले 5 साल में तो वैसे ही खत्म होने वाला है। तो उसको 1-2 साल पहले ही हम उसको सेट करके फिनिश कर दें। राइट। तो अगर मैं सही तरीके से समझूं इसको, तो मतलब केपेक्स मोस्टली आपने कर दिया है। हाँ। तो अब यहाँ पे सारा प्ले है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का, या जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइज होगा वैसे वैसे हमारी कैश फ्लोज भी बेटर होंगे, वैसे वैसे हाँ मार्जिन भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। या राइट एंड राइट। उससे इंटरनल एक्रूअल्स भी हमारे बढ़ेंगे, तो जिससे हमारा डेट भी कम होता रहेगा और हमें और रिक्वायरमेंट। और ये नेक्स्ट 2-3 साल का आपका व्यू यही है कि 2-3 साल तक या नया कोई या केपेक्स नहीं लगेगा? या ग्रेट। सो अब अपने
फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़े ग्रोथ और एक्सपेंशन रिलेटेड मैटर्स पे। तो धर्मज का, अब जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक स्टेटेड गोल है कि 2030 तक 2000 करोड़ तक जाना है, और 650 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो लास्ट ईयर हमने क्लोज किया था इतना। हाँ, तो इस टारगेट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट, जो आपके 3 बिजनेस सेगमेंट है, उससे प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का ब्रेकडाउन एक रफली, मुझे मालूम है एग्जैक्ट तो हम लोग कोई कुछ नहीं बोल सकते कि क्या क्या होना चाहिए, और कंपनी कैसे इन सेगमेंट्स के बीच ग्रोथ को बैलेंस करेगी, इनके अलग अलग मार्जिन्स और बाकी डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए। इसमें मेजर टास्क हमारा ग्रोइंग, जो ग्रोथ का फैक्टर रहेगा, एक तो एक्सपोर्ट। जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने स्टार्ट किया तो मोस्टली प्रोडक्ट जो पायरेथ्रोन्स है वो एक्सपोर्ट में जाता है, तो ये हमारा मेजर टास्क रहेगा और उसके ऊपर हमारा फोकस एक्टिविटी रहेगा। और वो उसमें उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए हम टीम भी आगे एक्सपांड करेंगे नए कंट्रीज में, जो मैंने पहले भी बताया था। रजिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमने ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन आता जाएगा, बिजनेस उसी हिसाब से ग्रो करते जाएंगे। तो ये एक हमारा एक्सपोर्ट जो बिजनेस है उसमें हमें काफ़ी लिवरेज मिलेगा। दूसरा है बी टू सी में, जो बी टू सी की पूरा मैंने स्ट्रेटेजी पहले बता दिया कि नया प्रोडक्ट, नया एरियाज, नया कस्टमर के साथ अलाइन करके वो बिजनेस भी पैरेलली ग्रो होगा। और बी टू बी पान इंडिया में कर रहे हैं, उसमें उसमें भी नए नए कस्टमर ऐड करते जाएंगे, नया प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे, तो वो भी ग्रो होगा। तो ये तीनों जो फैक्टर है, तीनों जो पाइपलाइन है हमारा, जो वर्टिकल्स है, उसको पैरेलली हम ग्रो करते जाएंगे। और जो रेशियो है हमारा एट 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 लेवल पे, वो मैनेज होता रहेगा, और तीनों लेवल, तीनों वर्टिकल हम आगे फ्यूचर में ग्रोथ करते जाएंगे। आज राइट, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट पाइपलाइन है, तो बस हमें सेल्स एंड मार्केटिंग में फोकस करके तीनों वर्टिकल को आगे बढ़ा। राइट। आई थिंक शिवम के पास फिर से एक क्वेश्चन है, तो शिवम आप पूछ सकते हो। सर, आपने बताया कि हमारा जो टेक्निकल प्लांट है, सो पीक ऑप्टिमाइजेशन अगर हम लोग देखें तो आपका उसमें रेवेन्यू पोटेंशियल इज अबाउट 400 करोड़ रफली। सो जो हमारा 2000 का टारगेट है, तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मुलेशन का जो ग्रोथ आना चाहिए, तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द वेट पुलिंग वुड बी डन थ्रू दैट, अगर हम देखें। सो करंटली फॉर्मुलेशंस वाला हमारा क्या कैपेसिटी, आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, पर क्या है, और लाइक पोटेंशियली कितना ये और जा सकता है टू कवर अप फॉर द रेस्ट ऑफ द 1600 करोड़ का? इसमें फॉर्मुलेशन कैपेसिटी हमारे पास 25,000 टन की है, एक जो हमारा प्लांट है उसमें, बराबर, उसमें हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर पैकिंग कैपेसिटी है, तो वो जैसे कैपेसिटी के हिसाब से क्या होता है, हम प्रोडक्ट भी ऐसा अलाइन करते हैं कि हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऐड करने से कैपेसिटी कम यूज होगा, लेकिन वैल्यू उसकी बढ़ेगी, समझे। आज कोई टेक्निकल एक है कि आज 600-700 की रेंज में कोई टेक्निकल बिकता है, अगर हम 2000 रुपये की प्रोडक्ट बेचने वाली प्रोडक्ट बनाए तो वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटी, इसमें जो हम लोग बातें करते हैं, इतना कैपेसिटी है, इतना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, पर ये मैंने बताया ना, सीजनल बिजनेस है, एक कंटीजेंसी पे चलाना पड़ता है। तो कहीं लो वैल्यू वाला प्रोडक्ट हम कितना भी कर ले तो रेवेन्यू नहीं आएगा, और हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट हम ज्यादा करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सब बैलेंस चलता है, पर हमारे पास, हमको ये कॉन्फिडेंस है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन में है और आज हमने टेक्निकल प्लांट में लगाया है, तो ये फुलफिल है। 2000 करोड़ करने में हमें कोई उसमें हर्डल नहीं है। माइनर कुछ चेंज करके थोड़ा मोटा कैपिटल कैपिटल करना पड़े तो बड़ा इतना कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें इसमें 100 करोड़ डालना पड़ेगा, 200 करोड़ डालना पड़ेगा। माइनर कुछ चेंज करके हम प्रोडक्ट एडिशन करके नया सेट करके भी उसमें हम कर सकते हैं। और फॉर्मुलेशन में भी अपने पास सफिशिएंट फैसिलिटी है, और फॉर्मुलेशन में शायद एक दो प्रोडक्ट नया करने में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, छोटा इन्वेस्टमेंट में वो नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है, और स्पेस है हमारे पास सफिशिएंट। तो ये मैनेजेबल है, ये बिजनेस कोई इतना, हम अगर 4000 करोड़ 5000 करोड़ की बात करें तो वो नहीं सेट होता है, पर 2000 करोड़ तक हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मैनेजेबल है। गॉट राइट। इट। सर रमेश भाई, जितना अपने को समझ में आता है कि अपने इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस पर डबल डाउन करना चाहते हैं, और कंपनी ने इस सेगमेंट को प्रायोरिटी देना समझा है। बट हमें एक चीज नहीं समझ में आता है कि जहाँ ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस वर्टिकल के मुकाबले इसमें मार्जिन्स तो कम है,
तो इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशन मार्केट में अपने को कौन सी स्पेसिफिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती है कि हम लोग इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी? इसमें वॉल्यूम गेन है ना सर। अगर ज्यादा एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा है कि हम B2C में भी कर रहे हैं, B2B फॉर्मुलेशन में भी कर रहे हैं, तो हमारा प्लांट है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रहेगा, कॉस्ट कम आएगा, और उसका जो टेक्निकल मतलब जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो बल्क में परचेज करते हैं, तो वह परचेज में हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो उसकी वजह से दोनों जो साइकिल है वो बेनिफिशियल हो जाती है। अगर खाली हम B2C में एक प्रोडक्ट करते हैं, वॉल्यूम इतना नहीं होता है, तो हमारा परचेज भी ऊंचा रहेगा, उसका प्रोडक्शन करने का भी कॉस्ट ज्यादा रहेगा। तो एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होने की वजह से कॉस्ट भी कम होता है और परचेज भी लो होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम 1 टन ले और 10 टन ले तो उसमें कुछ तो फर्क पड़ता ही है। राइट, राइट। तो रमेश भाई, सबसे पहले तो थैंक यू। आप बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, हम लोग काफी समय ले रहे हैं आपका, लेकिन आप बहुत आराम से जवाब दे रहे हो। और आई एम श्योर जितने लिसनर्स लाइव है और जो बाद में भी रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में जाता हूँ जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो धर्मज ने नए प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशंस इंट्रोड्यूस करने पर काफी फोकस किया है रिसेंटली। और कंपनी के नए प्रोडक्ट पाइपलाइन की डिटेल्स थोड़ा बहुत अगर आप उसके ऊपर प्रकाश डालें, प्लस हम्म। क्रॉप प्रोटेक्शन या एग्रीकल्चर नीड्स के कौन से स्पेसिफिक एरियाज को आप आज टारगेट कर रहे हैं, हम्म। और इन नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च टाइम थोड़ा बता सके तो हम्म। काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। जैसे एरियाज के मैं बताऊं तो मेजर जो पोटेंशियल एरिया है ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमें डेप्थ में जाना है, डिगिंग करना है कि भाई ये जैसे गुजरात में किया वैसा MP में करना है, राजस्थान में करना है, महाराष्ट्र में करना है। तो उस तरीके से हमारा जो सेगमेंट है वो ग्रो होगा। हमने पहले जैसे फ्यूचर पास्ट में ये सीखा था कि भाई एक साथ पूरे स्टेट सब जगह पे स्टार्ट कर दो बिजनेस, यहाँ इतना हो गया उतना हो गया, ये सब नहीं करते। एक एक स्टेट को लेके उसको डेप्थ जाके पूरा अंडरस्टैंड करके उसमें वहाँ बिजनेस का एक हैंडसम साइज होना चाहिए, तब जाके वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखती है, एक्सपोजर मिलता है और कंपनी का ब्रांडिंग होता है। तो डे वन से हमने ऐसा प्रोडक्ट चुना है कि जो प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक हो, लॉन्ग टर्म हो, हर एक काफी क्रॉप में उसका सेगमेंट हो। तो उसको हमने आज तक हम देखो तो हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड अपना नीलायन का बनाया जो सीड ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, दूसरे क्रॉप में दूसरी पेस्ट में भी यूज होता है। एक पड़गम हमने कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट ब्रांड बनाया। एक PGR में रुजुता को हमने ब्रांड बनाया। तो एक दहाड़ करके प्रोडक्ट है उसको हमने ब्रांड बनाया। तो ये प्रोडक्ट को हम उसके ऊपर फोकस वर्क करके एक ब्रांड करते हैं तो उसके पीछे 10 प्रोडक्ट चलने लगते हैं और कंपनी का एक ब्रांडिंग इमेज शुरू हो जाता है कि भाई धर्मज का प्रोडक्ट है, कोई बात नहीं कुछ भी दे दो। तो इस तरीके के हमने कंपनी का भी एक ब्रांडिंग किया है। और ये एरियाज इस तरीके से सिलेक्ट करके वहां जो प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करते हैं फार्मर लेवल पे है कि उसका ये प्रॉब्लम है तो उसका ये सॉल्यूशन है। और ये इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए, फार्मर को भी कम पैसे में उसका रिजल्ट आना चाहिए, अपना जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका भी प्रॉफिट मार्जिन मैनेज होना चाहिए, और हमारे पास भी मार्जिन होना चाहिए। तो उस प्रोडक्ट पे हम फुली फेस में काम करते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी से हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आज हम जो कर रहे हैं उसमें काफी प्रोडक्ट में अपने को अच्छा रिस्पॉन्स आता है और उस प्रोडक्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं। और नया प्रोडक्ट हम मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया कि भाई हम एक सर्वे हमारा चालू रहता है कि भाई आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कौन आया और वो कौन सा सेगमेंट में क्लिक हुआ। तो वो सेगमेंट हमारे पास है, क्रॉप है, नेटवर्किंग है, वो प्रोडक्ट हम चूज करते हैं और उसको हम लॉन्चिंग सेट कर देते हैं। जो हमने फरवरी में बजटिंग करते हैं तो उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आने वाले समय में ये प्रोडक्ट अभी करना है, ये प्रोडक्ट बाद में करना है, ये प्रोडक्ट जब टाइम आता है तब करना है। तो उसी बेस पे उसका लाइजनिंग प्रोसेस, उसका जो ब्रांडिंग करना है उसकी स्ट्रेटेजी, वो सब सेट करके हम नया प्रोडक्ट सेट कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने 1 महीने पहले टोप्रामाइजिन करके प्रोडक्ट लॉन्च किया जो BSF का प्रोडक्ट है, पेटेंटेड था, लास्ट ईयर ऑफ हुआ। तो हमने इस बार उसका फॉर्मुलेशन का रेसिपी सब लाइसेंस वगैरह सेट कर लिया और 1 महीने पहले उसको लॉन्च कर दिया। तो ये पीरियड उसका जो रबी का है वो इतना ज्यादा नहीं है, पर हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सब कस्टमर के पास चला जाएगा। नेक्स्ट खरीफ सीजन जो आएगी शुगर केन की, उसमें वो प्रोडक्ट हम पूरा हॉट सेट करके सेट कर लेंगे।
तो इस तरीके की हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं नया प्रोडक्ट का। तो वो जैसे B2C में किया तो B2B में जो जो कस्टमर उसको करते हैं तो उसको भी हम प्रपोज करते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट चालू कर लो, उसमें ऐसा रहेगा। तो उस तरीके से दोनों पाइपलाइन में हमारा प्रोडक्ट सेट होता है। राइट। तो इनोवेशन की बात करें तो हमने एक चीज और देखा है कि हमारी कंपनी ने ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ कोलैबोरेशंस और मेजर एग्रोकेमिकल कंपनीज के साथ मार्केटिंग पार्टनरशिप्स काफी एक्सप्लोर की है। हाँ। और क्या आप इस इनिशिएटिव्स पर कुछ अपडेट दे सकते हैं कि किस टाइप की पार्टनरशिप ढूंढे जा रहे हैं आपकी तरफ से, और इन कोलैबोरेशन से कंपनी क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करती है रिसेंटली, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, तीनों तरफ से अगर आप बता पाओ तो। में हमें एक ऐसा सर्चिंग कर ही रहे पार्टनर की कि जो हमें एक्सपोजर मिले ग्लोबल लेवल का। डोमेस्टिक में तो रेंज है, सब है बराबर, और नया नया प्रोडक्ट भी जो नीड है वो हम करते जा रहे हैं। पर ग्लोबली जैसे ये रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस में काफी समय जाता है, तो अगर हमें ऐसा कोई पार्टनर मिलता है कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, उसको हमारे जैसी कंपनी का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर पाए, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो यूज कर पाए, तो उस तरीके का हम सर्चिंग कर रहे हैं और मीटिंग भी चलती रहती है। तो वो हमें एक प्रेजेंस मिलेगा तो हमारा ग्लोबल लेवल पे काफी एक्सपोजर हमको मिलेगा, और उस तरीके का हमारा स्ट्रेटेजी भी है कि राइट। हम जॉइंट वेंचर कर पाए और आगे बढ़। सही है। तो रमेश भाई, एक एक पॉइंट आपने थोड़ा सा टच किया था सिंथेटिक पायरेथेरॉइड्स के ऊपर में। तो सोर्सेज भी हाईलाइट यही करते हैं कि इंडिया दुनिया के 70% सिंथेटिक पायरेथेरॉइड्स मैन्युफैक्चर करता है और चाइना इस मार्केट में नहीं है। तो हाँ। इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को देखते हुए धर्मज ग्लोबल सिंथेटिक पायरेथेरॉइड्स मार्केट में अपनी पोजीशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकता है, एंड मार्केट शेयर गेन करने के लिए कंपनी कौन से की डिफरेंशिएटर्स को लेवरेज करने की सोच रही है, तो उस पर और थोड़ा आप प्रकाश डाले तो अच्छा रहेगा। तो वही मैंने बताया ना कि जो पैरेथ्रोइड का मार्केट है जो जो कंट्रीज में, वहाँ हमारा उस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवा ये, क्योंकि ये एग्रोकेमिकल जो है पेस्टिसाइड वो हेजार्डियस होता है। वो हम सीधा जाके कई कंट्रीज में काम नहीं कर सकते, क्योंकि कई कंट्रीज हाईली रेगुलेटेड कंट्री है, क्योंकि हेजार्डियस है इसकी वजह से। तो हमें वहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अभी हमारा हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और वो कंट्री भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ कस्टमर भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा फोकस वर्क अभी चल रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन आना शुरू होगा तो वो तुरंत तुरंत हमारा एक्सपोर्ट वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेन हमारा की स्ट्रेटेजीज है कि भाई हम इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे फास्टन किया जाए और हम वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकते तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं रमेश भाई कि इस रीजन के कारण जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बताया कि इस इंडस्ट्री में ये एक पोर्शन एक तरह का एंट्री बैरियर क्रिएट करता है कि हर कोई जाके कर नहीं सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से चेकिंग होगी और टाइम लगेगा। हैं। राइट। ओके। तो आगे बढ़ते हैं रमेश भाई, अब थोड़ा सा आपके बारे में, आपसे इंडस्ट्री के बारे में और ये जानना है कि सोर्सेस ये भी मेंशन करते हैं कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम हाँ। एक्सपेक्ट कर रही है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। तो या इस पोटेंशियल PLI स्कीम पर धर्मज क्रॉप गार्ड का पर्सपेक्टिव क्या है, एंड कंपनी को इससे क्या स्पेसिफिक बेनिफिट मिलेगी, प्लस PLI स्कीम का कंपनी के इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर क्या इम्पैक्ट होगा, थोड़ा आप इसके ऊपर बताएं तो अच्छा रहेगा। PLI स्कीम का अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए। और जैसे आज चाइना में देखो तो गवर्नमेंट पूरा इंडस्ट्री को फेवर करता है, PLI भी है वहाँ। तो यहाँ अपने पास इतना वो नहीं है। तो हम भी काफी एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, जैसे SCFI है, PMFI है, क्रॉप लाइफ है। तो वो गवर्नमेंट को भी उस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इस तरीके का सिस्टम हो, कोई प्लान हो, तो उसको सपोर्ट करते हुए अपना ये एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो आगे बूम कर सकता है। मतलब चाइना की कंपटीशन में जाके अपने को भी आगे ग्रोथ मिल सकता है। नई कंट्रीज, जो कंट्रीज में हम नहीं एंटर कर पा रहे हैं, वहां भी हम करके काम कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा अच्छा मिल सकता है। तो ये सपोर्ट की वजह से अभी इस एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अपने इंडिया में जरूरत भी है। राइट। सो आई थिंक शिवम, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हाँ हो। सर, आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग सम सब्सिडी फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट ईयर में कुछ 2.5 करोड़ जितना
या वो इंसेंटिव अपना इंटरेस्ट सब्सिडी है, अच्छा। तो वो हमने ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया है, वो प्राइमरी अप्रूवल भी हो गया है। तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब उसका अप्रूवल आ जाएगा फाइनल, तो वो अपने को मिल जाएगा। ओके। दो तरीके की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, एक तो ये अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट के कनेक्टेड, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का जो ड्यूटी होता है वो भी अपने को गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी देता है 5 साल के लिए। तो वो भी हमारा अप्रूव्ड हो गया है, वो भी आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं आपसे, वो हमसे चैट में भी किसी ने पूछा है, और हमने भी ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके रखा था कि एक हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल शिफ्ट जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग से एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए एक तरह से चैलेंजेस भी लेके आती है और अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है। ठीक हाँ। है, तो धर्मज क्रॉप गार्ड अपने आप को सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन की डिमांड को केटर करने के लिए कैसे पोजीशन कर रहा है, एंड ऑर्गेनिक फार्मर की नीड्स को एड्रेस करने के लिए कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या इनिशिएटिव्स हम लोग सोच रहे हैं आगे लाने के लिए। ये बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है वो अभी जैसे अपने कंट्री में ये नया नहीं है, मतलब ग्लोबली भी कई कई कंट्रीज में चलता ही है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे नीम बेस्ड प्रोडक्ट है, एजाडिराक्टिन है, वो हम जब कोरोमंडल में काम करते थे तभी उसने डिवीजन स्टार्ट किया था, आज भी अपने देश में चल रहा है। पर अपने इंडियन फार्मर की मेंटालिटी ऐसी है कि अभी स्प्रे किया अभी रिजल्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो स्लोली रिजल्ट मिलता है, टाइम लगता है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना थोड़ा टफ है। और धीरे धीरे कई कंपनी उसमें काम करना चालू कर रही है और कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, पर वो बिग फार्मर लेवल पे या कोऑपरेटिव लेवल पे या जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं, जैसे आप टी गार्डन में जाओ, कॉफी गार्डन में जाओ, कई ग्रेप्स में कई फार्मर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट करके कर रहे हैं। तो उसमें आने वाले समय में फ्यूचर में अपने को जैसे एमएनसीज कंपनी आती है लेके, क्योंकि आप देखो तो इंडियन कोई कंपनी ने आज तक कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया है। वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है एमएनसी, फिर हम फॉलो करते हैं डोमेस्टिक कंपनियां, फिर उसको यूटिलाइजेशन में आता है। तो अब धीरे धीरे वर्ल्ड ग्लोबल उस बायोलॉजिकल वे में आगे बढ़ रहा है, कई कंट्रीज में चालू भी किया है। और हम भी ऐसा ऐसा सर्चिंग भी कर रहे हैं कि भी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो तो उसके साथ हम टाई अप करके उसका प्रोडक्ट का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम इंडिया में संभाले और उसको धीरे धीरे ग्रो, क्योंकि वो स्लोली प्रोसेस है अपना। जैसे फार्मास्यूटिकल में एलोपैथी और आयुर्वेदिक में जितना डिफरेंस है उतना ही इसमें डिफरेंस है। 100% कभी भी कोई अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज सोइल को हम स्टराइल नहीं कर सकते ना। आज हम 50 साल 100 साल से सोइल के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते ही जा रहे हैं। और हम कल बोलेंगे कि भाई इस जमीन में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो वो एक मेरे हिसाब से वो नहीं होता है कि भाई ये ऑर्गेनिक हो गया। धीरे धीरे से हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना कम करें, पेस्टिसाइड का यूज करना कम करें। अगर पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं करेंगे तो उसका यील्ड ही नहीं आएगा, तो फार्मर को खाएगा क्या, क्या मिलेगा उसको। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कई एरियाज वाइज है कि भाई बड़े बड़े फार्मर या बड़े कॉर्पोरेट लेवल के कुछ सेगमेंट में करे, फिर उसको एक एग्जांपल दे कि भाई इस तरीके से ये होता है, तो उसको प्राइस भी अच्छा मिलेगा, उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी भी मिलेगा, तब जाके वो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। वो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। और आज से चालू करेंगे तो 10 साल 15 साल में लगेगा कि नहीं अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। और जहां हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वो हम आज की डेट में भी कर रहे हैं, कहीं न्यूट्रिशन बेज में पीजीआर में वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम डेवलप कर भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम भी हमारा अच्छा है। पर 100% बायोलॉजिकल करना बहुत ही टफ है, उसमें समय लगेगा। और समय के साथ साथ जैसे जैसे नया मॉलिक्यूल आएगा और उसमें रिजल्ट विजुलाइज होगा और यील्ड भी मिलेगा, तब जाके वो फंडामेंटल डेवलप हो सकता Yeah. है। ऐसा हमारा परसेप्शन है, मतलब हमारा मानना नहीं, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू दिया है रमेश भाई, क्योंकि हमारा इमोशन ये बोलता है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, है। मगर ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है कि प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में।
और हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है श्रीलंका में क्या हुआ जब उन लोगों ने सोचा कि हम हाँ, लोग श्रीलंका का इकोनॉमी पूरा हिल गया था जो वहाँ हाँ। 10% सो कर ये आपने बहुत ही एक अच्छा इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों को ब्लेंड करके आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। तो रमेश भाई हम लोग एकदम एंड की तरफ आ रहे हैं। दिया। तो एक कार्तिक जी है जिन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं जिनको आपने थोड़ा बहुत टच अपॉन तो किया था, लेकिन मैं फिर से पूछ ले रहा हूँ सो दैट क्लैरिटी मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन इनका ये है कि अपना स्मॉल फॉर्मुलेटर्स इनिशिएटिव में कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे जहाँ पे अपने अराउंड 1000 स्मॉल फॉर्मुलेटर्स है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पता पूछा। है था ना, स्मॉल जो फॉर्मुलेटर होता है उसके पास फॉर्मुलेशन करने की फैसिलिटी थोड़ी मोटी होती है, नहीं होती है। जो प्रोडक्ट करते हैं तो वो बाहर से भी लेता है। तो उस तरीके के हमारे पास कस्टमर जो पोर्टफोलियो है वो मेजर सेगमेंट है, उसको डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है, वो हम उसको फुलफिल करते हैं और वो भी ग्रो होता है, हम भी साथ में ग्रो होते हैं। राइट। तो आपने जैसे बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि साइका प्लांट में आपके पास 8 प्रोडक्ट है। तो थोड़ा हाँ। वो प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स है, और ब्रीफली अगर समझा पाए तो। मैंने बताया 5 पायरेथ्रोइड है हमारे पास, साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, परमेथ्रिन, लेम्बडासाइलोथ्रिन, बाइफेंथ्रिन। और दूसरा 3 प्रोडक्ट है, थायोमिथोक्साम है, क्लोरेंट्रिनाबोल है और टेबुकोनाजोल हमने स्टार्ट किया है। राइट। और कुछ बल्क प्रोडक्ट्स हमने डिसकंटिन्यू किए थे रिसेंटली। कौन से है वो और क्यों किया, कुछ उसके ऊपर में बता सकते हैं? बल्क मतलब फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। हाँ। कई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि मैंने बताया ना, उसका इतना डिमांड नहीं होता, उसकी जरूरत भी नहीं होती, उसकी जगह नया प्रोडक्ट जो आया है उसने ले लिया, तो वो फिर प्रोडक्ट हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हमने फेनोवाल डिसकंटिन्यू किया, क्विनालफॉस डिसकंटिन्यू किया अपना B2C ब्रांड में। B2B हम्म। में तो हम सर्व करते हैं क्योंकि उसमें कोई इन्वेंट्री रखने की अपने को जरूरत नहीं होती उतना। नीड बेच पे हम प्लान करके उसको हैंड ओवर कर देते हैं। और उसमें राइट। हमारा लंबा वो प्लानिंग वो नहीं रहता है भाई। कोई बोले कि हमें क्विनाल फोस 2000 लीटर चाहिए, तो हम उसका तुरंत ही उसको टेक्निकल मंगा के फॉर्मुलेशन करके हैंड ओवर कर देते हैं। और B2C में हमने ये जब कोई प्रोडक्ट था तो वो हमने डिसकंटिन्यू कर लिया क्योंकि उसका वैल्यू भी उतना नहीं था, वॉल्यूम भी उतना नहीं था और उसकी इतनी डिमांड भी नहीं थी। तो ये 3-4 प्रोडक्ट हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था। राइट। और इनका लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और आपने अपने कॉन्कॉल्स में भी बताया था कि ये बिकॉज ऑफ म्यूटेड डिमांड है। तो हम लोग फिर भी इतना वॉल्यूम ग्रोथ पे क्यों जा रहे हैं जब डिमांड कम है? तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ सकता है, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है इससे रिलेटेड? मैं समझा नहीं क्वेश्चन को। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का वॉल्यूम्स ग्रोथ इतना ज्यादा कैसे हो रहा है ऐसे टाइम पे जहाँ पे डिमांड कम है, बिकॉज ऑफ, और उसी के कारण प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। या तो वो क्यों हो रहा है और क्या हम लोग अलग कर रहे हैं जिससे, और हमारी क्या वॉल्यूम strategy? वॉल्यूम तो ग्रोथ होगा ही ना, क्योंकि हम मैंने बताया कि हम नया एरियाज डेवलप किया, नया कस्टमर ऐड करते हैं, नई प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं, तो वॉल्यूमेटिक ग्रोथ तो होना ही होना है। और प्राइस कभी अप कभी डाउन वो चलता है, तो वो जनरली प्राइस मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अपना प्राइस कंट्रोल हम नहीं कर सकते ना किसी भी चीज का, क्योंकि हम वो इतना बड़ा लार्ज स्केल में होता है, वो डिस प्राइस का कंट्रोल कर सकता है, बाकी प्राइस तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। राइट। राइट। तो थैंक यू सो मच रमेश भाई। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें हम लोग बेसिकली Yeah. आपके थोड़े बहुत रीसेंट इनिशिएटिव और फ्यूचर प्लान के बारे में ही जानेंगे। तो हमने ब्रीफली आपने मेंशन किया था अपनी ब्राजील वाली सब्सिडरी के लिए। हम्म। तो जैसा हम लोग सबको ही जानते हैं कि हाल ही में हमने नोटिफाई किया कि ब्राजील में एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है हमने। अगर आप Yeah. बता सके तो इसके पीछे का स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, और क्या हम दूसरे ज्योग्राफीज में भी ऐसे अनाउंसमेंट्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं आगे, और किस स्पीड से, अगर आप थोड़ा समझा पाओ तो। ब्राजील में हमारा सब्सिडरी स्टार्ट करने का रीजन तो ये था मेजर कि हमने बोर्ड में अप्रूवल मिल गया, प्रोसेस हमें स्टार्ट कर दिया, वहाँ कंसल्टेंट कंक्लूड कर दिया। और पहले से हम वहाँ प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया ही था। तो उसमें अपने को लिवरेज मिलेगा, और जैसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो हमारी सब्सिडरी वहाँ रेडी होगा, तो हम तुरंत वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ ब्राजील में जाके भी हम B2B बिजनेस कर सकते हैं, और B2C करना हो तो भी हम ब्राजील में कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन मकसद था और स्ट्रेटेजी था कि भाई हमारे पास प्लेटफॉर्म रेडी हो, तो हमारा जैसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होता है तो तुरंत हम वहाँ B2B B2C बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
ये मेन अपना कंसर्न था। राइट राइट राइट। सो रमेश भाई, ये सबको ही को पता है, आप लोगों ने काफी अच्छा हद तक इसको गाइडेंस को हमारे अपने प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल और एनुअल रिपोर्ट्स में भी डाल रखा है कि 2030 तक का हमारा विजन है 2000 करोड़ रेवेन्यू करने का। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है कि रास्ते में की माइलस्टोन्स कैसे आएंगे, और क्या स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव हम लोग अब भी ले रहे हैं जिससे हम लोग 2030 तक श्योर शॉट 2000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं? तो हमने तीनों वर्टिकल लाइनअप किए है ना, उसी वर्टिकल में पैरेलली ग्रो करते जाएंगे और वो वहां तक अपने को ले जाएगा। उसका हमें फुली कॉन्फिडेंस है, और उसी में जो जरूरत पड़ेगी वो हम उसमें ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे समय के साथ साथ। थैंक यू सो मच रमेश भाई। आपने इतना कीमती समय अपना निकाल के और काफी प्यार से समझा के आराम से पूरा क्योंकि एग्रोकेमिकल हम लोग इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में एक बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री समझते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छे से सवाल का जवाब भी दिया बहुत पेशेंस के साथ, और हमारी ऑडियंस ने भी पेशेंटली काफी अच्छे से सुना। और मैं शिवम का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि शिवम के रिसर्च के कारण ही हम लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछ पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत जल्द हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे भी डाल देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डाल देंगे और आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे। सो रमेश भाई, कुछ थैंक यू। क्लोजिंग रिमार्क आपके तरफ से अगर हो जाए तो बहुत अच्छा ना, रहे। आपका भी समय दिया आपने, हम हमारे जैसे एक मीडियोक्रेट कंपनी को आपने ये प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, तो आपका भी खूब खूब धन्यवाद। और हम आगे मिलते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच रमेश भाई। थैंक थैंक यू यू। वंस थैंक अगेन। यू।